Wow. Good evening, one and all. More than 350 participants we are having. Such a wonderful mathematical evening. That's lovely. So I, Abid Akhtar Ansari, welcome you all for today's webinar, that is teaching mathematics at the secondary level. Yes. So before starting on the webinar, I would like to give you some of the standing instructions for today's webinar. You all are on watch and view mode, and also you can chat with the panelists on the chat box given on your screen. आप सबको जो भी स्क्रीन पे चैट बॉक्स दिखाई देगा, आप अपने पैनलिस्ट के साथ उसी पे संपर्क साध सकते हैं, सीधे उसी से बात कर सकते हैं. आप में से कोई भी पैनलिस्ट को देख नहीं पाएगा, बट पैनलिस्ट सॉरी आप सब में से कोई भी पैनलिस्ट से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता सिवाय चैट के. पैनलिस्ट आपको नहीं देख सकते, आप पैनलिस्ट को देख सकते हैं. सो दिस इज द थिंग. हम सवाल किसी भी समय ले सकते हैं, आप जब चाहें तब सवाल पूछ सकते हैं, बट कंसिडर हम उसे सेशन के एंड में ही करेंगे, Q&A सेशन में. अगर पैनलिस्ट किसी भी समय पे किसी भी सवाल का उत्तर देना पसंद करते हैं तो वो अपनी तरफ से दे आर फ्री टू गिव द आंसर्स. सो नॉट वेस्टिंग वन मोर सेकेंड, I would like to introduce today's two panelists who are very, very great people for us, very experienced, very knowledgeable people. None other than Dr. Hukum Singh himself. He is the PhD, CSc, DSc, is former Dean Academics Professor and Head Department of Education in Science and Mathematics, DESM, NCERT, New Delhi. He has been involved in the development of curriculum, textbooks, and problem books in mathematics at various stages of school education. He was also involved in the development of training and teachers' resource material. He also helped in the establishment of maths laboratories in NCERT and in schools and colleges. He was awarded Government of India Scholarship at Budapest, Hungary, including during 1981 to 1986, and participated in 12 international conferences in mathematics in Hungary, Germany, Italy, Japan, etc. He has published 60 research papers, articles, abstracts, and fields in Finsler geometry, Riemannian manifolds, Lorentzian manifolds, Lie groups, Lie algebras, action of Lie group of Riemannian manifolds, geometry and its applications in national and international journal. He is a life member of 10 academic societies at national and international level. My God, so much to learn from you, Hukum sir. Now we have the other resource person who is the panelist, Dr. P.K. Chaurasia. He himself is a professor and head Department of Education in Science and Mathematics, DESM, Regional Institute of Education, NCERT, Ajmer. A highly respected mathematics educator, Dr. Chaurasia has extensive experience of leading operations projects and staff in educational technology projects at NCERT. His core competencies include school curriculum, mathematics curriculum, technology in education, much needed in today's days, mathematics education and harmonic analysis. Dr. Chaurasia was organizing secretary National Conference on ICT in School Education 2017. He's a coordinator GeoGebra Institute at NCERT from 2010 to 2014 and member of ICT Advisory Board KVS New Delhi from 2011 to 2014. Such a vast experience. और बोलूं तो बहुत ज़्यादा है, कम बोलूं तो बहुत कम नहीं होगा. Dr. Chaurasia has presented papers in several prestigious national and international conferences, seminars, workshops, and symposia. So here we again welcome both of the panelists. Can we have you on screen, sir? Dr. Hukum sir and Dr. Chaurasia sir, can we have both of you on the screen so that every member of our attendees. Abid, you are mute. We would love to start with Dr. Hukum Singh sir, who will be talking about the need of the practical knowledge of the mathematics and different various styles of teachings, not only the chalk and board method.
and Dr. P.K. Chaurasia sir will be covering up the questions, various questions based on ICT and other various aspects. So, Dr. Hukum sir, we would love that you start the session, sir. Thank you very much. Over to you, sir. P.K. Thank Chaurasia you, sir. Abid. Thank you, sir. Thanks to Ratnasagar team for hosting today's program. It is very unfortunate that all the teachers could see us, but we cannot see them. This is for the first experience. And if I want to say something, the teacher will be surprised to know about us. All of them are using NCERT books from classes 6 to 12. And in all the textbook, exemplar problem, laboratory manual, and in all the books, if they see, then myself and Professor Chaurasia will be there. And in this way, I can say that we are not unknown to each other. Now, today, since we are going to discuss various aspects of mathematics education, and different types of questions which were sent by teachers, especially tools for teaching mathematics, how to remove phobia, how to create interest in mathematics, and how to teach and learn mathematics through online method, how to develop app, and how to make testing, different types of questions. So some of the questions I will be covering, and some of the questions will be covered by my colleague, Professor Chaurasia. All of you will be very happy that both of us have worked in NCERT for so long a period, and whatever I left in NCERT, Professor Chaurasia continued and continuing. Especially when we established Math Lab in NCERT, then I was thinking that it may not go at a grassroots level, but Professor Chaurasia was the one man who developed the kit at upper primary and secondary stage. And it is unfortunate that in Bhopal and Chhattisgarh, the kits have gone, but they are not properly used. And therefore, now I am propagating for teaching mathematics through no cost, low cost teaching aid, covering all your questions given in the form of 12 bullets. They will be covered everything. So before starting those things, first of all, I would start from the following some beautiful statements, anecdotes, and that are Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashyate. Means आप भी अपने में पूर्ण हैं सारे टीचर्स, और हम भी अपने में पूर्ण हैं एज ए मेंटर, और अगर हम कुछ आपको दे जाएंगे तो भी आप पूर्ण ही रहेंगे, और आप कुछ हमको दे देंगे अगर क्वेश्चनियर के थ्रू या किसी, तो आप भी पूर्ण रहेंगे. और ये हमारे एंशिएंट लिटरेचर में ही दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म 0 + 0 = 0 and 0 - 0 = 0. This is our history. Some of the bullet point was also how to motivate the students. So this is one of the aspects of the motivation, that most of the branches of knowledge, especially in mathematics, was developed in India, starting from decimal numeral system 0 to 9, and then others. 4 fundamental operation, addition, subtraction, multiplication, division, different branches of knowledge, arithmetic, algebra, geometry, trigonometry, even calculus, 40. Now I will not go to history. If I go history, it will take up number of areas, number of hours, and it is very unfortunate for motivation purpose. Whenever we go in the teachers training programs, lakhs and lakhs of teachers training program, we have thousands and thousands and lakhs of teachers in 32 years I have interacted. But when I ask that, give the name of 5 Indian mathematicians, and you will be surprised to know we get only 5 names: school level, college level, and university level. When I talk that about field medalists or other things also, then again proper response is not coming. And at this point of time, I would thank to Ratnasagar organization, especially Prakash ji, who, when I gave some names of the Indian mathematicians, and he prepared a very, very beautiful collection. And I think they are going in different parts of the country about the Indian mathematicians, because Indian mathematics, for motivation purpose, we have to tell about Indian mathematicians.
And Indian mathematics, if you go in the BC, all mathematics was given in the form of Sulba Sutra. And the Sulba Sutra, when I want to say the number of mathematicians, Baudhan, Katyan, Apastanga, Pringla, 4 or 5 mathematicians, they made the basic foundation of the mathematics. And when we come to AD, then Aryabhatta is the father of mathematics, father of geometry here in India, algebra, a plus b whole square you are studying, and a plus a square plus b square was given by him from daily life, from concrete to abstract, but we are teaching from abstract way, and therefore it is considered difficult. So Aryabhatta, Bara, Mirti, Brahma, Bhaskara, and then Bhaskara second, up to 1200 BC, and then Madhava, Nilkanta, Parmeshwara, 1600 AD, and then Ramanujana, 1887, and last one, Harishchandra. So in this way, about 20 names are there. So for motivation purpose, if we give the names and contribution of all these mathematicians, I think students will be excited that our heritage is very, very rich. It is not at present everything we are importing, but in ancient time, we exported mathematics to all branches of mathematics to different parts of the world. But it is unfortunate that using our mathematics, number of countries have become developed country, and we have become developing country due to weakness in mathematics. And this is why everywhere I say that if we want to become again developed country, again we have to improve mathematics. And this is why I say that development of any nation is directly proportional to development of mathematics. Mathematics will be strong, science will be strong, technology will be strong, and automatically country will be strong. Everything at present, when we are discussing about Atmanirbhar, our Prime Minister is talking about Atmanirbhar. In Atmanirbhar, mathematics contribution is most. Why contribution most? Because we are importing, and geometry is there in car. And you will be, all of teachers will be surprised to know that when NCERT made National Achievement Survey, and when we interacted with thousands and thousands teachers, and we came to know that geometry and number system is considered most difficult at secondary stage. And then little bit algebra and geometry. And geometry is everywhere, but it is in one-dimensional form. One-dimensional form means you are taking one line segment, and you are adding another line segment, another line segment. So line segment and line collection of line segment, line, and one way passing, then ray, and both way passing, then line, ray. Both the direction they are coming. And you are going by the motorcycle or car, and when you see that T point is there, the right side road is there, then only ray is there, both side roads are there, then line concept you are using, and starting point to that T point line segment you are using. But it is very unfortunate that when we go in the selection committee for appointment of TGT, PGT, even principal appointment of 20, basic concepts are not there. And this is why basic concepts are not there, because we are teaching mathematics in an abstract way. An abstract way, definitely a centimeter. When I ask what is the meaning of a centimeter, what is meaning of a square centimeter, what is meaning of a cube centimeter, what is square b centimeter, if concept is not clear, then automatically phobia will be created. And all of since teachers are from Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and before retirement, when I was in NCERT, I organized different training programs, and Chhattisgarh and Madhya Pradesh teachers were there. And when I was interacting, and teachers were telling, sir, up to 8th class students are passing, and 9th class they are admitted. Now up to 8th class, if they are passing only, and it means the basic concept about number system, say natural number, then whole number, then integer, then rational number, and the 9th class irrational number. So if they are not aware about these things, then rational number and irrational number will combine to give real number. And when real number is there, then only one-dimensional space, and then the two-dimensional space, then three-dimensional space will be there. So basic concept up to 8th class is not clear, and therefore at secondary stage, our teachers are struggling. And therefore, I would request to teachers to remove fear and phobia by giving few lectures up to 8th class in the form of visualization, so that a student can understand what is one-dimensional in the form of one-dimensional, what is two-dimensional, and what is then three-dimensional, all these visualization, and then they should collect in the daily life. And for that purpose in NCERT, we have established math lab, and once for a couple of years, Professor Chaurasia was there, Division of Education Skit. I'm very thankful to him that
since I was very busy, and as soon as I discussed him, let us bring a kit so that it should reach different parts of the country. And then kit was developed. And what is happening now, kit has been prepared, but in line Almira, not used. And if you use those kits, there are some form of the kits items are here. I'm visual, I'm saying. So just I'm showing it. It is not necessary to purchase it. You can make it only simple. Cardboard, hardboard, everything. Sweet boxes you are purchasing, different boxes you are purchasing. Make the cube. Take the sheet, 6 faces you make, and then 1 square, 2 square, 3 square, 5 square, fold is in the form of cube. And then 2 cube if you are taking, then the cube 2 cube form will be here. 2 cube you are taking, then your cuboid will be there. So the cube shape is there, cuboid shape is there, and then connect with the daily in the room itself. Students are there, teachers are there, and ask the student whether your room is, the base is a square or rectangle. If it is a square and height is also same, then it will be cube. And if base is rectangle, height is something else, then it will be cuboid. So immediately the student will be starting connecting mathematical knowledge with the daily life. You teacher will be surprised to know I was in Delhi some training program, and one 9th class student was there, and I asked that we are here sitting in your guest room, and if you join one corner to another corner, what kind of mathematical you will get, concept you will get? Sir, line. Then I asked that what is difference in line and line segment? Sir, ऐसा तो पढ़ाया नहीं जाता क्लास में. Then I asked the teacher, कहा सर हम तो इस तरह से पढ़ाते ही नहीं हैं. So basic concept, what is point, what is line segment, what is perimeter, what is area, what is volume, what is surface area, what is total surface area, all these conceptual things, since we are giving in an abstract way, a square, pi r square, h 1 by 3 pi r square, a, b, c, a cube, b cube, since we are not visualizing, and therefore it has created fear and phobia. And therefore, in order to remove that fear and phobia, you have to use all these visuals in this way, where all the faces are flats, and up to 8th class students have studied all these things, all these shapes. They have also studied if number of vertices are 8 here, number of faces are here 6, number of here edges are 12. The number of b minus e plus f is equal to 2. And it is not only when base is a square. When base is pentagon, base is hexagon, base is octagon, all types of shape. Problem solving, somebody was telling how to make the problem solving, sir. So if problem solving has been done, understood for using cube, the problem solving could be extended for different types of shape. And then different types of building, they will be making different types of building. Because for making the building again you see this type of shape in old houses we are using pentagon also. One pentagon here, another pentagon is here, and then rectangle you are putting in this way, and your house is ready. And our teacher will be surprised to know when I was giving some lecture in IIT here, IIT Delhi, and professor was telling, sir, my engineering student has made this house. I told that we are giving this training in our mathematics lab in NCERT at 6 to 8 level. So this is the state of affair. It is very unfortunate that basic concept is not clear even after 12th class. And therefore, in this way, all these visuals you kindly have. So these are the flat. The faces are on flat only. Now in the curve from 9th class, when you are coming, the mensuration and that thing, the curve form of the cylinder is there. The cylinder is there, and then cone is there. So again, I am telling that just fold this, take the rectangular sheet and fold it, and automatically you will see that your cylinder is ready. And same base, same height, you can make the cone also. And then ask the student to verify that how pi r square base is h is there, volume of the cylinder pi r square h is there, and 3 times if you pour by the cylinder, same base, same height, it will be filled up. It means the volume will be. So this is a verification. Some of the angle of the triangle 180 degree when we are asking, the child is memorizing. But I ask that if the 9th class student has come, I request to the teacher to tell that 6 type of triangles are there. Let them make the 6 types of triangle: equilateral triangle, isosceles triangle, scalar triangle, right angle triangle, acute angle triangle, all type obtuse angle triangle, and calculate how one day. This is the research, and they will understand. And all these concepts are there, whether electric pole or railway station, everywhere all these shapes and everything is there. So in this way, this shape, and then the combination of cylinder and cone. Again, this type of, and we are using the missile preparation. So everything I was telling that geometry is most interesting, most important for development of our country.
but geometry out of the country is considered most difficult. I was 3 times I was in Germany, and Germany very strong economic power is there. So again, if in India also, if we want to self-independent, whatever Prime Minister is telling that हम सस्त जो आत्मनिर्भर भारत है, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे पहले हमको ज्योमेट्री को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और ज्योमेट्री जब स्ट्रांग करना होगा तो आप मैन्युफैक्चर जितनी भी कार हैं आज के हमारी तरह तरह की जो नॉन न्यूक्लियर ज्योमेट्री वहां पर नॉन फ्लैट ज्योमेट्री यूज करके बनती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार हम बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोप्लेन हमारी बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल हमारे यहाँ बनेगी। हम किसी आर्मी स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग दे रहे थे, तो वो ऑफिसर लाए, वो कहते साहब हमको ऑफिसर की वाइफ है। हमने कहा यू आर वेरी लकी, आप अगर 11th-12th में बच्चे को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे देंगे तो वो बच्चे जो जाते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जब करेंगे तो तरह तरह के प्लेन बनाएंगे और तरह तरह के जो बंदूकें यूज करते हैं और जितने भी वेपन्स यूज करते हैं, तो उनको गर्व होगा कि हमारी वाइफ ने ट्रेनिंग दिया था और मैं वेपन बनाने की। और हर जगह मैथमेटिक्स है, हर जगह ज्योमेट्री है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो 8th क्लास तक और फिर 9th क्लास में जब बच्चा आता है तो हर चीज का विजुअलाइजेशन। तो उस तरफ विजुअलाइजेशन में सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जितने शेप हैं ये तो सब बता दिया गया, और 9th क्लास में सब इसका कंस्ट्रक्शन था सारा करें 2 डायमेंशन। और ये लो कास्ट टीचिंग एड से, नो कास्ट लो कास्ट, देखिए नो कास्ट लो कास्ट हम ये अब प्रचार कर रहे हैं। देखिए सब बच्चे आजकल घर में यूज करते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये डिब्बा मिलता है, ये फेंक देते हैं, ये डिब्बा मिलता है। देखिए दांत साफ कर, सबसे पहले बच्चा उठता है दांत साफ करता है, पेस्ट ले लेता है फेंक देता है, इसको यूज करिए। माय द टीचिंग नो कास्ट लो कास्ट टीचिंग है। नो कास्ट देखिए हम दाढ़ी बनाते हैं सुबह क्लीन करके, नो कास्टों का सब फेंक देते हैं, इसको यूज करें मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। और इसको यूज करने में देखिए वर्टिकल भी है, एजेस भी है, फेसेस भी है, सरफेस एरिया भी है और वॉल्यूम भी। और इसी चीज को हम फिर ये भी आपका ये तो क्यूबॉइड के फॉर्म में है, यहाँ पर भी फेसेस की बात कर सकते हैं, एजेस की बात कर सकते हैं, वर्टिसेस की बात करते हैं, वो भी -C+F यूज कर सकता है। इसी चीज को हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। और एक्सटेंड करने का मतलब है कि हम एक पीस को हमने लिया, देखिए ये सारे शेप हमने बता दिया मैथमेटिक्स का अप टू 10th क्लास और करवा भी दिया, लेकिन डेली लाइफ में यूज क्या है? हम लोग हाई स्कूल जब पास किए तो कुछ भी नहीं पता था, सारा रट डाले। हम अपने टीचर से वेरी फ्रैंकली कर रहे हैं कि सारी डिग्री लेने, DSc भी 3 फॉरेन डिग्री लेने के बाद भी मैथमेटिक्स हम NCERT जाकर जब हमने मैथ लैब स्टार्ट किया एस्टेब्लिश करना 1993 से, फॉर्मली 1996 में जब एस्टेब्लिश किया अपने हाथ से। हम इसलिए ये फोकस आपको दे रहे हैं कि आपको ये अपने अगर फोबिया दूर करना है तो आप सबको ये करना पड़ेगा। ये देखिए एक मॉडल मैं आपको दिखाना चाहता था जो स्टार्टिंग पॉइंट 26 साल पहले का था, वो कहीं मिस हो गया। तो सबसे पहले मैंने खुद सीखा, इसलिए आप भी BSc हैं, MSc है, B.Ed हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, आप 0 से स्टार्ट करें। और जब 0 से स्टार्ट करें 8th तक का सारे मॉडल आपके बन जाएंगे। तो अब आप देखिए 8th क्लास तक जब आपने बना दिया है, आपने ट्रायंगुलर प्रिज्म आपने बना दिया है और क्लास में यहाँ पर पढ़ा दिया, ट्रायंगुलर प्रिज्म का शेप हमारी किट में भी है, NCERT की किट खरीदेंगे आप, उसमें भी पढ़ा हुआ है। तो अब आपको बताना डेली लाइफ में यूज क्या है। तो डेली लाइफ में देखिए अगरबत्ती रखने के लिए यूज होता है, डेली लाइफ में देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म आप इवन होली खेलने के लिए। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी सारी किट जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द 32 स्टेट्स में गया हूँ। जम्मू कश्मीर गया तो मैंने किट खोला, अंडमान निकोबार गया तो मैंने कुछ किट खोला, सब बंद खरीद लिए हैं, ग्रांट है 4 करोड़ 5 करोड़ खरीद लिया, बंद है वैसे ही। तो जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं, कह रहे अपने आप सीखेंगे नहीं, तब तक नहीं सिखा सकते। इसलिए सारे टीचर से मेरा निवेदन है कि अगर वो किट को नहीं, पब्लिक स्कूल से बहुत सारे आज टीचर प्रोग्राम में पब्लिक स्कूल के होंगे, अपने हाथ सारे टीचर बनाएं, लेबोरेटरी मैनुअल खरीद कर NCERT का। रत्ना सागर ने भी बहुत सी मटेरियल डेवलप किया है, उसको भी यूज करें। हम लोगों ने NCERT में कभी नहीं ये किया है कि केवल NCERT बुक ही यूज करिए, तमाम तरह के रत्ना सागर ने भी बहुत अच्छी मटेरियल कुछ बनाए हैं, उनको यूज करिए। और यूज करके लर्निंग बाय डूइंग पर थ्रू मैथ लैब्स एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसे यूज करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट हम जो इतना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसको यूज करके आगे बढ़ाइए। और उसका तुरंत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्क्रेटाइज किया, कॉन्क्रेटाइज यहाँ पर किया और फिर दिखाया कि डेली लाइफ में कहाँ यूज। तो सिंपल आपको एग्जांपल देख रहा हूं, देखिए ट्रायंगुलर ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया आपको पता है, अंडर रूट ए साइड रहेगा तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होगा। अब उसके हाइट बना दीजिए तो मालूम हो गया। अब ये 6 देखिए, 6 इस तरह के ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लिया और कंबाइन कर दिया है, और देखिए आप सबको अच्छा लगेगा कि देखिए अगरबत्ती का डिब्बा। मैं अगरबत्ती कहीं खरीदने मार्केट में गया और देखा अगरबत्ती इतना, तो इसको मैंने सबसे पहले खरीदा। ये अगरबत्ती तो घर में दे देंगे और डिब्बा के लाल मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अब इसमें भी देखिए, ये नहीं कि क्यूबाइड में भी नंबर ऑफ वर्टिसेस एजेस फेसेस की बात b - c प्लस यहाँ बच्चे से कराइए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप स्किल डेवलप होगी कि वहां जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर भी हम बेस एरिया निकालेंगे 6 का, फिर उसके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम आएगा। इसके बाद सरफेस एरिया की बात है। सरफेस एरिया तो एक रेक्टेंगुलर फेस है। हमेशा जब बनाइए, बच्चों से बनवाइए ऑनलाइन, या उनको जब होमवर्क दीजिए तो उनसे कहिए कि प्रिज्म भी बनाएं और करस्पॉन्डिंग पिरामिड भी बनाएं, और फिर देखें ये कहाँ कहाँ है। तमाम प्लेग्राउंड में देखेंगे, म्यूजियम में जाएंगे, हर जगह मैथमेटिक्स है। लेकिन चूंकि विजुअलाइजेशन नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि मैथमेटिक्स केवल सर्टिफिकेशन के लिए। आज जितने हमारे कारपेंटर, आप देखिए, आप सब लोग कारपेंटर के यहाँ जाते हैं, टेबल खरीदते हैं, मैं सब कुछ खरीदते हैं, आपका बॉक्सेस तमाम खरीदते हैं, और जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो बढ़िया से बढ़िया कारपेंटरी कर रहा है, और हम सर्टिफिकेट पास करके और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्किल है ही नहीं, कोई टूल यूज ही नहीं किया। तो ये यही सारे टूल हैं मैथमेटिक्स को सरल बनाने के लिए। आपने बीएड में सभी लोग पढ़ चुके हैं, several methods of teaching, inductive method, deductive method, heuristic method, synthetic method, analytic method, problem solving method, IT method। अब इस समय IT मेथड, ऑनलाइन मेथड, ये तो अलग दुर्भाग्य की बात है, इस समय लॉकडाउन है तो वेबिनार के थ्रू रत्ना सागर इतना कर रही है मेहनत। लेकिन ये आजकल जो टॉक मेथड था, अब IT मेथड आ गया है, तो IT मेथड भी एक दूसरा बदला हुआ रूप है, वर्चुअल। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, इसको केवल सप्लीमेंट्री टूल के रूप में, लेकिन अगर मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में अगर कंट्री को प्रॉस्पर बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो ये सब अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। मैं तो मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज वगैरह बैठे, हमने कहा डू वी टेक वर्चुअल फूड, डू वी वियर वर्चुअल कार, डू वी लिव इन वर्चुअल हाउस, सब लोग सहमत थे। तो वर्चुअल डिजाइन बनाने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए सब कुछ है, लेकिन कंट्री को डेवलप करने के लिए, कंट्री को प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए वो डिजाइन IT यूज करके सब कुछ करें। अभी हमारे चौरसिया जी बहुत सी चीजें उसमें एनिमेशन के थ्रू तमा बनाएंगे, लेकिन वो एनिमेशन के बताएंगे, एनिमेशन को समझकर फिर हाथ से उसको करिए। आप नए तरह के प्लेन जो बन रहे हैं, वो सबसे पहले प्रोटोटाइप जो हैंड से ही बनाते हैं, उसके बाद तब मशीनरी और सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके फाइन कर रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले कैलकुलेटर हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ, वो नहीं चलाए, तो भाई दिवे हम विदेश में नहीं बसे, NCERT में आ गए, नहीं हर जगह आज कैलकुलेटर कंपलसरी होता। 15 साल NCERT में लड़ाई किया नॉट टू इंट्रोड्यूस कैलकुलेटर, वरना सारा ब्रेन हमारा जो कंप्यूटेशनल पावर है, जो कंप्यूटेशनल स्किल है, खत्म हो जाता। इतनी लड़ाई करना पड़ा। तो ये जो जब हम हर चीज जो है वर्चुअल, आप वर्चुअल से तो कुछ नहीं, वो जरा सैनिटेशन बात चलाना, वर्चुअल से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वर्चुअल केवल डिजाइन के लिए और सब चीजों के लिए है, शॉर्टकट के लिए है। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी 135 करोड़ पॉपुलेशन है, वो प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम हर जगह मैथमेटिक्स को अप्लाई करेंगे कंक्रीट फॉर्म में, कंक्रीट एग्रीकल्चर में भी, क्योंकि मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर में भी है। आई एम हैप्पी कि बंसल जी रत्ना सागर के हैं, हमारी मैथमेटिक्स के बहुत जगह लेक्चर सुना, उनको याद है कि सर रोटी में भी मैथमेटिक्स है। तो रोटी भी मैथमेटिक्स है, वो सर्कुलर है, लेकिन वो एरिया के फॉर्म में रोटी खाते हैं। लेकिन सर्किल जो है वो एरिया नहीं है, सर्किल का जो है बाउंड्री केवल है 2πr है। लेकिन हम जब टीचर्स वो इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस इन 2πr, व्हाट इज πr स्क्वायर, उनको समझ नहीं आ रहा है कि खोखला जो है दैट इज 2πr, वो सर्किल है। रोटी जो है वो आप रोटी वास्तव एरिया ऑफ द सर्किल है। लेकिन रोटी कहाँ से आती है? वो खेतों में से आती है, और खेत में भी वहां पर भी मैथमेटिक्स है, लेंथ भी है, एरिया भी है, वॉल्यूम भी है। एनी क्वांटिटी जो है सीड हमारे यहाँ खेतों में डाल दिया जाता है। आप लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ टीचर्स हैं, कुछ प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट बच्चों से करिए कि 5 किलो हम ये गेहूं डालेंगे, 1 किलो गेहूं डालेंगे, इस एरिया में क्या प्रोडक्शन होता है मैथमेटिकली, कितना उसके लिए सीड चाहिए, कितना उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए, कितना वाटर चाहिए। नहीं कि रात में ट्यूबवेल लगा दिया और सुबह तक पानी है। गन्ने के लिए कुछ पानी चाहिए, चना के लिए कुछ चाहिए, और गेहूं के लिए कुछ पानी चाहिए। हर जगह मैथमेटिक्स है आत्मनिर्भर के लिए। तो मैथमेटिकली अगर हम करेंगे तो हमारी फार्मिंग भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी। रोटी, कपड़ा में हर जगह मेजरमेंट है,
इसीलिए जब हम 3 क्वेश्चन बहुत इजीली टीचर्स के बीच में करते हैं, पहले बच्चों को बताइए व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के लिए भी हम एक श्लोक यूज करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, इंपॉर्टेंट है, अपना हेरिटेज मोटिवेट के लिए वो भी हमारे दिमाग में आ रहा, शेयर कर रहा हूँ। एंड दैट से श्लोका से यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मर्यो यथा तद वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थितम। Like crests on the heads of peacock, like gems on the hoods of cobra, so as mathematics on the top of all the Vedanga Shastra. अब आपको आश्चर्य हुआ, ये हमारे उपनिषद में 1200 BC में दिया गया है। जिस तरह से मोर की शोभा उसके मुकुट से होती है, कोबरा सांप की शोभा उसके सिर में स्थित मणि से होती है, उसी तरह से प्राचीन काल में विज्ञान की शोभा गणित से होती है। और गणित जब हमारे कंट्री का, सोने की चिड़िया में गणित का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। गणित जब हमारे यहाँ सबसे स्ट्रांग थी तो इंडिया डेवलप कंट्री था। आज गणित फोबिया क्रिएट कर दिया गया है, तो हम जो है डेवलपिंग कंट्री है। तो इसलिए ये सारा बार एनसीईआरटी में तो हम लोगों ने सब तरह के मटेरियल, रत्ना सागर भी हम लोगों के कांस्टेंट टच में अपने मटेरियल को हमेशा मॉडिफाई करते रहते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाते रहते हैं, ये सब यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने पढ़ाने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा, और उस तरीका बदलने के लिए आपको हैंड्स ऑन पर ही आना पड़ेगा। तो इसलिए ये बीच बीच में जो हमारे आ रहे हैं, इसको आप टीचिंग टूल, जो पहला ही क्वेश्चन था बुलेट पॉइंट, टूल क्या है, तो ये सारे टूल हैं। एक और टूल आपको बस दिखा रहा हूं मैं, इसमें सब कुछ आ जाता है प्राप्त। देखिए ये बहुत बढ़िया टूल है। अब हमने मैथ लैब एनसीईआरटी में बनाया था, वो बड़ा सा हमने बोर्ड बनाया था, जियो बोर्ड। एक तरफ हम जियो बोर्ड है, दूसरी तरफ सर्कुलर बोर्ड है। बाद में जो है हमारे चौरसिया जी डिवीजन एजुकेशन किट्स में थे, तो दूसरे तरह का जियो बोर्ड बताया। लेकिन ये जियो बोर्ड हम तमिलनाडु में लेक्चर देने गए थे, तो उसने हमको गिफ्ट दिया कि सर आप ही से मैंने एनसीईआरटी से नकल किया, आप इसको यूज करिए। तो मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ कि सिंपल जियो बोर्ड, आप कुछ नहीं करिए, सारे टीचर्स, आप 500 1000 है, जितने भी टीचर हैं, आप जाकर एक प्लैंक लीजिए, तो थोड़ा सा हार्ड कार्डबोर्ड ले लीजिए, 2-3 दर्जन या करीब 100 नेल्स ले लीजिए 10 बाई 10 करके, और अपना जियो बोर्ड आपका रेडी है। 1 सेंटीमीटर पर 1 इंच पर लगा लीजिए, जियो बोर्ड आपका रेडी है। और इस जियो बोर्ड को लेकर आप ब्यूटीफुल्ली जो है क्लास 8 तक भी मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। और ये टूल आपके मैथमेटिक्स सेकेंडरी स्टेज पर भी है, और इसका विजुअलाइजेशन कराइए। और विजुअलाइजेशन करने के बाद ये एक्स एक्सिस आप 9th क्लास में पढ़ाते हैं, तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस रबर बैंड से दिखा दिया आपने। और फिर आप देखिए, आप कोई भी स्टिक 1 डायमेंशनल ले लीजिए या कोई वायर ले लीजिए, और उसके बाद कहिए कि x + y = 1, x + y = 2, x + y = 3। इसी तरह से आप जब इस तरह से, तो -x + y -x + y = 1 -x -xy, इसी तरह से x - y = 1, x - y = 2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड देन mod of x + y, mod of ये जो आपका स्क्वायर बन गया। So mod of x + y = mod of x + mod y = k कह दिया, तो फैमिली यहाँ पर आपकी स्क्वायर की बन जाएगी। और वही आप 9th क्लास में स्टार्ट करते हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax + by = c के फॉर्म में, a b c की सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसमें है, a नेगेटिव b पॉजिटिव, a पॉजिटिव b, a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो इसमें है। तो सारी क्वाड्रेंट में बदलते रहते हैं इसमें। और ये ब्यूटीफुल, हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आउट ऑफ 6 स्टेट में गए और देखा वहां जो सीलिंग है वो ब्यूटीफुल है मैथमेटिक्स से। और सारे जब टीचर तो करे सर इतना पे यहाँ इतनी अच्छी, यस, हमने कहा देखिए आपका जो सीलिंग की कवरिंग हुई है वो सारी mod of x + y, mod of x + mod of y से वहां पर। सो टीचिंग एड, इतना जबरदस्त टीचिंग एड है ये जियो बोर्ड, जो हमने 27 साल पहले वहां बनवाया लैब में। उसके बाद किट फॉर्म में पूरे देश में तमाम ऑर्गेनाइजेशन आकर उसको कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम एक्चुअली केवल सेल पर्पस के लिए नहीं, इसको यूज करें मैथमेटिक्स को, और फिर डेली लाइफ में बताएं कि जैसे हमने किया x + y mod of x + mod y = k कहा हमने, तो ये कहाँ यूज है, बच्चे से कहें वो विजुअलाइज करके देखें। ये कोई जरूरी नहीं कि x + y = k वो दिखा देगा, कोई जरूरी नहीं कि mod of x + mod y भी दिखा दे, लेकिन mod of x + y mod of y जो है वो हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में, जो पूरी सीलिंग ही उससे कवर। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसी पर क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में भी आप सारा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में जो विजुअलाइजेशन आप यहाँ कराते हैं, ये सारा मॉडल सबको सारे बच्चों को मॉडल बनवाइए यहाँ पर, कि आप सब लोग पढ़ा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं अब ये देखिए चोकोस का डिब्बा है, नो कास्ट लो कास्ट टीचिंग, ये घर में चोकोस आता है, मैंने चोकोस ले लिया, डिब्बा ये इस करके यूज कर रहे हैं। आप यूज सारे बच्चों को कहिए इस तरह से यूज करें, और वो देखें कि कहाँ पर यूज हो रहा है। और एमएड स्टूडेंट का कहीं मैं वाइवा ले रहा था यहाँ दिल्ली में, और उससे जब पूछ रहा हूँ कि हाँ ये R × R है, क्या ये N × N भी होगा, क्या
कि जेड क्रॉस जेड भी होगा क्या, क्यू क्रॉस की भी होगा क्या, इरेशनल प्रॉब्लम, सारे इस तरह से उनको बताया ही नहीं जाता, कि वो रटवाया जाता है। तो इसलिए आपको 9th क्लास में जब बच्चा आता है तो आपको ये भी डिफरेंस बताना होगा। एन जेड क्यू आर सी तो बता ही दिया है, एन क्रॉस एन क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, क्यू क्रॉस क्यू क्या होगा, जेड क्रॉस जेड क्या होगा, इरेशनल क्रॉस और आर क्रॉस। सो आर क्रॉस आर में ही आपका ये 2D बने। तो इस तरह से जब आप विजुअलाइज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का करेंगे, और जब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का करेंगे तो जो हमारा 8th क्लास तक मैथमेटिक्स जो ज्योमेट्रिक एक्सियम पर था, एक्सियम पर बेस था, यहाँ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आ जाता है। तो एक्सियम के फॉर्म में आपने 5 एक्सियम, उसको जब पूछते हैं इंटरव्यू में ही हम पूछते हैं, वो पता ही नहीं 5 बेसिक जो ज्योमेट्री के एक्सियम है कि लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, तो उसको बच्चों को कहिए कि एक वायर ले लिया, एक थर्मोकोल सिंपल बाल लिया, उसको कवर करते जाए और फिर देखे, वो देखिए ये लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है नहीं, और उसको बड़ा करता जाए, बढ़ाता लाइन है, लाइन सेगमेंट है। तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ लाइन यस वास्तव में। Through a point, many lines can be drawn. So through a point, let the child do it. Let the child do that. One point is here and the point is in 2D. I am in blackboard. Then here, if I am the space, the line through a point, many lines are passing. Many lines are passing here. अब उसको बच्चों को कहें कि कहाँ ये सब है आपका, तो कमरे में भी कह दीजिए, कमरे में आप बैठे हैं और किसी कार्नर को ले लीजिए, तो कार्नर पर 2 लाइन लेंथ और ब्रेथ जब मीट करती हैं तो वो पॉइंट है, 0 डायमेंशनल स्पेस। तो एक पॉइंट से दो वर्टिकल भी ले लिया, तो आप वहां पर कहेंगे थ्रू ए पॉइंट मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन। पहला एक्सियम हुआ लाइन कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। दूसरा एक्सियम आपका आ गया कि आपका जो है वो थ्रू ए पॉइंट मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब दिखाते जाइए। और तीसरा एक्सियम आपका हो गया कि थ्रू 2.19 लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन। तो आप फ्लोर पर ही बता दीजिए बच्चे को कि वो कार्नर जो हमने 9th क्लास बच्चे से पूछा ये लाइन है, हमने कहा लाइन और लाइन सेगमेंट। तो बेसिक वहां पर समझना होगा। तो डेली लाइफ में कैसे ज्योमेट्रिक एक्सियम जो है वो हम बुक में तो दे दिए हैं, लेकिन वही जब हम टीचर्स ट्रेनिंग में जाते हैं या हम इंटरव्यू लेते हैं वही पूछते हैं, तो उसका डेली लाइफ में प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रख लिया है बस। चौथी एक्सियम 2 लाइन इन अ प्लेन आर पैरेलल आर इंटरसेक्टिंग। तो उसलिए आप यहाँ पर आप जियो बोर्ड ले लें या कोई भी प्लेन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए कि आप एक लाइन यहाँ पर आपने रख दिया, एक लाइन आपने यहाँ रख दिया, एक पॉइंट यहाँ रख दिया विच इज नॉट ऑन द लाइन। तो एक लाइन यहाँ से पास हो रहा है तो दूसरा लाइन यहाँ से इस पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो 2 लाइन इन द प्लेन आर पैरेलल। और या ये लाइन लिया तो इंटरसेक्ट करी परपेंडिकुलर, इस तरह से ले लिया तो नॉट परपेंडिकुलर है। तो सारा डेली लाइफ में आप रूम से ही दिखा दीजिए सारा कुछ। और उसके बाद प्ले फॉर इफ अ लाइन इज गिवन पॉइंट ऑफ लाइन एंड थर्ड जो है जो लास्ट एक्सियम है सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, वो भी आप फ्लोर से ही बच्चे को डेली लाइफ में तो बता देते हैं, क्लास में तो बता सम ऑफ द थिंग। डेली लाइफ में क्या है, डेली लाइफ में बच्चों को बताइए कि फ्लोर पर आप बैठे हैं, डायगोनल को मिलाइए, तो आपका शेप जो फ्लोर पर होंगे या तो स्क्वायर होगा और या रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल को मिलाएंगे आप तो 2 ट्रायंगल में बन गया। तो ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल ऑफ द आई, वो अगर स्क्वायर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर रेक्टेंगल है तो स्केलेन ट्रायंगल होगा। तो उसको बताइए कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल वहां पर 180 डिग्री है, वहां पर उसको पता लग जाएगा। और फिर उसके बाद चारों एंगल का देख लेगा, तो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल वहां पर 180 डिग्री, वहां पर 180 डिग्री, तो 360 अपने आप डिग्री, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 360 आइदर स्क्वायर रेक्टेंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल से हो जाएगा। फिर डेली फिर उसी का जब वर्टिकल लेते हैं तो वहां पर बताइए। तो इस तरह से टूल आप ये भी यूज करिए। उसी तरह दूसरी साइड उसी जियो बोर्ड को कंसेंट्रिक सर्किल बनवा दीजिए, और कंसेंट्रिक सर्किल बनवाने के बाद फिर उसको आप रेडियस का कॉन्सेप्ट, डायमीटर का कॉन्सेप्ट, एरिया का कॉन्सेप्ट, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट, और मैथमेटिक्स हमने कहा स्टडी ऑफ मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, स्टडी ऑफ पैटर्न, स्टडी ऑफ सिमेट्री, ये सब उसको यहाँ पर बताइए कि पहले ये बन गया, आप वर्टिकल लाइन लिख दें तो सिमेट्री की कॉन्सेप्ट इधर का इधर सिमेट्री का। उसको अगर सर्किल को स्क्वायर को आप फिलअप करिए यूनिट स्क्वायर से, तो 1 यूनिट स्क्वायर, 2 यूनिट स्क्वायर, 3 यूनिट स्क्वायर, तो पैटर्न की बात कर सकते हैं। तो उसको और ये देखिए कि पैटर्न कहाँ पर है, कि जब आप फ्लोरिंग करते हैं अपने घर को ब्यूटीफाई करने के लिए, एक टाइल लगाते हैं तो 2x2 है, दूसरा टाइल लगाते हैं तो फिर आपका 2 1 हो, लेकिन लेंथ आपका 4 हो जाता है, तो एक पैटर्न, फिर लेंथ एक साइड 2 है लेकिन वो 6 हो जाता है, तो वहां पर पैटर्न को मैथमेटिक्स स्टडी ऑफ पैटर्न के रूप में आप फ्लोरिंग जब करते हैं तो वहां यूज करते हैं। तो मेजरमेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पैटर्न का भी मास्क, और सिमेट्री का भी काम। और सिमेट्री का सबसे ब्यूटीफुल तो यही मैं कहता हूं कि आप यहाँ पर लाइन रख दीजिए, पेन रख दीजिए,
तो ये आंख अब इसके सिमेट्रिकल, ये आपने रखा तो ये इसके सिमेट्रिकल दोनों, ये इसके सिमेट्रिकल है। अगर एक आंख, दोनों आंख ठीक है, नहीं वहां मिसकंसेप्शन भी पैदा हो जाता है। तो इस तरह से ये ईयर ये इससे ये, तो सारी आप डेली लाइफ में अपनी बॉडी से ही करिए। तो ये आपकी ये सब फ्लैट में है, लेकिन अभी ये बॉडी में आ जाएंगे तो वो आपकी ज्योमेट्री जो है वो नॉन फ्लैट ज्योमेट्री। और नॉन फ्लैट ज्योमेट्री मतलब यहाँ पर अगर सर पर कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री नहीं होगा। 9th क्लास में हमने दिया है और वो जनरली टीचर छोड़ देते हैं। वो मोस्ट ब्यूटीफुल है, जितनी कार बनती है वो नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री है, जितनी मिसाइल बनती है नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री है, जितना एरोप्लेन बनता है सब नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है 9th क्लास। उसको बच्चों को कराइए कि यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाएं, क्या वो लाइन सेगमेंट बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा? नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो यहाँ पर ये स्फेरिकल ये आपका इलिप्टिकल या स्फेरिकल व्हाटएवर यू टेक, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 100 मोर देन 180 डिग्री होगा। आप ये सबसे ऊपर है तो मोर देन 100 डिग्री है, और अपने पैर के सबसे नीचे देखिए बीच में आप ट्रायंगल बनाइए तो हाइपरबोलिक ज्योमेट्री है वहां पर। मैं कल सोच रहा था टीचर्स को कैसे बताया जाए तीनों अपनी बॉडी में ही। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे तो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री होगा, और अपने पैर के नीचे ट्रायंगल बनाइए बीच में तो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल 100 लेस देन 180 डिग्री होगा। और ये टेस्ट हमने, ये मेरा बेटा बैठा है, मैं इसको कल पूछा, बीटेक कर लिया कंप्यूटर, कल पूछा हमने इससे कि बताओ भाई क्या होगा पैर के नीचे जो हम लगाएं सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सर पापा ये तो लेस देन 180। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि कम से कम बीटेक करने के बाद कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। तो इसलिए अब आप अपने बच्चों को, सारे टीचर से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग यंग टीचर हैं, 9th 10th को पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को भी लर्निंग बाय डूइंग शुरू करिए। और लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रकाश जो हमारा रत्ना सागर टीम है, इसमें बहुत से लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं नाम लेना शायद उचित नहीं लगेगा, लेकिन जितने भी बच्चे एक्टिविटी में, चाहे बंसल जी हो, चाहे प्रकाश जी हो, और इनके घर में जितने बच्चे हैं, ये सब लर्निंग बाय डूइंग शुरू कर दिए हैं। उनसे पूछिएगा कि कितना उनको मजा आता है मैथमेटिक्स करने, और कितना उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और कितना वो फिर डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक तरह का एक टीचिंग एड आपका ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इस समय देखिए 9th 10th लेवल पर ही हम देखिए एक बीमारी, बहुत भयंकर बीमारी आ गई है, आप सभी लोग जानते हैं। कमरे में जैसे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सब जगह लॉकडाउन है, लेकिन आपको सैनिटाइजर यूज करना है। और यहाँ पर सैनिटाइजर जो है ये तो सिंपल लिक्विड है, लेकिन हम भी अपने घर में ही रखे हैं। तो अभी बेटे से कहा लेकर आए, देखिए यहाँ भी मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स क्या है, यहाँ सिलेंडर है। अब सिलेंडर है तो यहाँ से पानी डालेंगे तो कुछ भी क्वांटिटी में गिर सकता है। तो क्या किया है, मैथमेटिकल दूसरा सिलेंडर बना दिया है। अब इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, तो यहाँ से निकालेंगे तो और भी थोड़ी कम क्वांटिटी में होगा, मतलब वेस्ट कम होगा। लेकिन उसके बाद फिर और सिलेंडर बना दिया उससे भी कम रेडियस का, जिससे कम। तो देखिए सारी मैथमेटिक्स है। अब ये 11th 12th में जब जाएंगे तो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की बात यही होगी, लेकिन 9th 10th में आप देखिए केवल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात होती है, शेप की बात होती है कि कैसे हम रेडियस के और इसकी बात है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका मास्क लगा रहे हैं, वहां भी कुछ मास्क आप देखिए मैथमेटिकल है, वहां पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप में बना रहे हैं। अब आप लोग अपने टीचर स्टूडेंट को मैथमेटिक्स प्रिसीजन जो है मैथमेटिक्स से आता है। जो नॉन टेक्निकल है, जो नॉन ट्रेंड है, वो अप्रॉक्सीमेट सब चीज करता है, लेकिन 9th 10th क्लास का बच्चा जो अपने हाथ मेजरमेंट करके तो एग्जैक्टली वो करेगा। तो देखिए आप यही से स्टार्ट करिए। जो ऑनलाइन कहते हैं, ऑनलाइन मेथड से कहते हैं मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, हम दिखाइए इसको ऑनलाइन का। अभी हमारे चौरसिया जी तमाम एनिमेशन दिखाएंगे, एनिमेशन बताकर, लेकिन एनिमेशन को दिखाने के बाद वो स्टूडेंट से कहिए कि अपने हाथ से बनाए। ये मेरा पूरे 32 स्टेट्स में गया, सब जगह कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स को समझने के लिए हेड्स ऑन, हैंड्स ऑन, हार्ट ऑन। दिमाग से सोचिए, हाथ से करिए और दिल से एंजॉय करिए, तो 100 आउट ऑफ 100 आएगा। थोड़ा यहाँ किया, थोड़ा यहाँ किया तो 7 आउट ऑफ 10 आएगा, और सिर्फ यही यूज किया, ये नहीं यूज किया तो 3 आउट ऑफ 10 आएगा। तो मैथमेटिक्स, ये कहा गया है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। इफ यू रीड समथिंग यू फॉरगेट, इफ यू सी समथिंग यू रिमेंबर। अब हुकुम सिंह चौरसिया जी को आपने किताब में नाम तो देख लिया होंगे, कोई हुकुम सिंह चौरसिया जी, लेकिन आज सामने आपके हैं, आप देख लेंगे तो आपको अच्छा सर को देखा। लेकिन आप मैथमेटिक्स को जब यहाँ हैंड्स ऑन करेंगे तब आप समझेंगे कि इसकी ये इतने छोटे से पीस की क्या वैल्यू है कि ये प्राइमरी मैथमेटिक्स, काउंटिंग नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सेकेंडरी की मैथमेटिक्स हम पढ़ा सकते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और हम इसको हायर सेकेंडरी 11th 12th के लिए भी यूज करते हैं।
तो इस तरह से आप ये भी टीचिंग टूल की बात हुई है तो ये भी हो सकते हैं। एक और बीच में टीचिंग टूल आ रहा है, एक मिनट, ये आपका 10th क्लास में वहां नेशनल NTS सेल में मैं इन्वॉल्व था कहीं, तो देखा क्वेश्चन 9th क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और इसी में आप पढ़ा सकते हैं ब्यूटीफुल्ली कि देखिए स्क्वायर शेप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो बुलेट पॉइंट आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे क्रिएट किया जाए। तो स्क्वायर का एरिया बता रहे हैं आप बच्चों, टीचर स्टूडेंट्स को, सर्किल का भी पढ़ा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा जब 5 साल हम यूरोप में थे तो स्क्वायरिंग सर्किल, सर्किलिंग स्क्वायर वहां प्रचार किया जाता था, यूरोप ने डिस्कवर किया। और जब मैं NCERT हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाता है MSc BSc, NCERT ज्वाइन किया, लिटरेचर एंशियंट लिटरेचर पढ़ा जब, तो देखा स्क्वायरिंग सर्किल, सर्किलिंग स्क्वायर ये सब हमारे सुल्बसूत्रा BC में अवेलेबल है। और ये क्या है कि आपकी स्क्वायर बनाया, एरिया कैलकुलेट कर लिया, सर्किल बनाया, इसका भी एरिया कैलकुलेट किया। तो अगर रेडियस R है, सर्किल का रेडियस R है, तो एरिया की इनसाइड सर्किल की एरिया पाई R स्क्वायर होगी। और R अगर रेडियस है और इनसाइड सर्किल है, टचिंग द साइड्स ऑफ द स्क्वायर है, तो 2R आपका साइड ऑफ द स्क्वायर होगा, तो 4R स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ 4R स्क्वायर कैन नेवर बी पाई R स्क्वायर, क्योंकि पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 इक्वल टू आपका 3 पाई हो गया, पाई 3.14 है, तो एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अब ये एक्सप्लेन करना है, भाषा में तो वहां दे दिया गया, लेकिन एज ए टीचर आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा स्क्वायरिंग सर्किल स्क्वायर। अब दूसरा जो ब्यूटीफुल हम प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करना है कि एरिया सर्किल की भी बता दिया, एरिया आप स्क्वायर भी समझा दिया। अब दूसरा स्क्वायर, दूसरी सर्किल हमने ऐसा खींचा जो वर्टिसेस से पास हो रहा है स्क्वायर की, तो एक इनसाइड सर्किल हुआ, मींस स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड बाय सर्किल एंड सुपरस्क्राइब्ड बाय सर्किल, एंड देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इनर सर्किल एंड आउटर सर्किल। अब NTS सवाल जब मैं देखा प्रॉब्लम, हमने कहा देखिए चुटकी बजाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही चीज को मैं जब टीचर्स ट्रेनिंग में पूछना शुरू किया, 100 टीचर बैठे हैं, 150 टीचर बैठे हैं, दिमाग ही नहीं काम कर। क्यों? क्योंकि समझा नहीं है, सब रटा हुआ है। एरिया ऑफ द सर्किल पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर A स्क्वायर। तो इसको, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही है कि सिंपल प्रॉब्लम पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। और इसी चीज को आप ये तो आपका 2D का है। अब 3D में जब हम आपको क्यूब और क्यूबाइड की बात कर लिए थे, यहाँ क्यूबाइड, तो अगर ये आपका बेस के रूप में यहाँ पर आप A+B होल स्क्वायर, मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग आजकल बना दिए हैं, जितने भी टीचर्स, A+B A सेंटीमीटर B सेंटीमीटर A सेंटीमीटर B से, तो A स्क्वायर ऑल बोथ द साइड्स आर सेम, तो A+B होल स्क्वायर का आपका 4 बॉक्स होगा, एक A स्क्वायर होगा, एक B स्क्वायर होगा, एक 2AB एक AB होगा, कंबाइन करिए। अब ये देखिए A+B होल स्क्वायर इक्वल टू, आर्यभट्ट ने 476 में डिस्कवर किया, 476 बार 499, 23 साल की उम्र में आर्यभट्टिया लिख दिया था आर्यभट्ट ने। और TIFR के वहां पर हम नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो भूमि भाभा सेंटर में था, और बहुत ओल्ड बुक देखा हमने मीटिंग के बाद, और देखा कि आर्यभट्ट ने A+B होल स्क्वायर जो फार्मूला निकाला था, वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में निकाला, जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है। मतलब कि पहले तो स्क्वायर दिया, अब उस स्क्वायर में A सेंटीमीटर और B सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ले लिया, और उसके बाद इसका बेस्ट होगा हम ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये अभी हम एप्लीकेशन थोड़ा A सेंटीमीटर ले लिया, B सेंटीमीटर ले लिया, और A+B हो गया। अब A+B को यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट वैसे है, अभी हम उसको डेली लाइफ और कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए उसके लिए हमने टूल यूज किया है। तो A+B हो गया, तो ये पूरा A+B होल स्क्वायर जब लेंगे तो एक पार्ट आपका यहाँ से यहाँ A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आपका B स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक AB मिलेगा, यहाँ AB A+B, और कंक्रीट ऑब्जेक्ट को यूज करके आर्यभट्ट ने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, और हम पूरे देश में। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 1993 जब हमने मैथ लैब NCERT में एस्टेब्लिश किया, तो मैं सबसे पहले ये मॉडल को बनाया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट को यूज करके हमने कंक्रीट फॉर्म में मॉडल बनाया NCERT मैथ लैब। और जब वहां 5 साल 7 साल बाद जाकर देखा, तो देखा वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट को यूज करके एब्स्ट्रैक्ट। तो एज ए रिसर्चर मैंने सोचा कि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट, जब हम A स्क्वायर मुझे पता है, AB पता है, तो A स्क्वायर पता हो गया, 2AB 2 रेक्टेंगल पता हो गया, B स्क्वायर पता हो गया, तो सम्मिल किया जाए, बन गया। और वहां जब देखा कि जो है उन्होंने कंक्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट, तो इसलिए फोबिया क्रिएट, मैथमेटिक्स इज कंसीडर्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव नेचर, इसलिए वो फोबिया क्रिएट किया हुआ है।
इसलिए हर जगह मैं सब जगह टीचर्स ट्रेनिंग में कहता हूं, आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं कि सबसे पहले आप बच्चों को जाकर कहिए कि मैथमेटिक्स इज मोस्ट इजी सब्जेक्ट। पहला, मैथमेटिक्स इज मोस्ट इजी सब्जेक्ट। क्यों इजी है? क्योंकि इसको सामने देखते हैं तो दीवार है 2 डायमेंशनल, दाहिने देखते हैं तो दीवार है 2 डायमेंशनल, पीछे देखते हैं तो दीवार है 2 डायमेंशनल, राइट देखते हैं, पीछे देखते हैं तो 2 डायमेंशनल, यहाँ कर्व ज्योमेट्री है, ऊपर सीलिंग तो भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। और बंसल जी चूंकि हमारे स्टेटमेंट को याद किए हैं कि जिधर मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, एक जगह हमने नहीं रिपीट किया तो उन्होंने याद दिलाया, डॉक्टर साहब वो आप क्यों नहीं बताया यहाँ पर, तो लास्ट में हमने बताया। तो पहले ही कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू। हमारे रूम में भी आप देखिए, दोनों सब तरह अपने रूम में ही बैठा हूँ और सब जगह मैथमेटिक्स ही है, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। हमारी एग्जिस्ट हम 3 डायमेंशन में बैठे हैं, सारी बॉडी हमारी 3 डायमेंशन है, हमारा किडनी 3 डायमेंशन है, लंग्स 3 डायमेंशन, सब कुछ है। अब मैथमेटिक्स अगर हम स्ट्रांग कर लेंगे तो हमारा जो इतने सारे जो बीमारियां तमाम हो रही हैं वो तमाम हर तरह के हाइपरबोलिक इक्वेशन, एलिप्टिक इक्वेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन सॉल्व करके वो शुरू कर सकते हैं। अब उसके बाद क्योंकि टाइम से खत्म करना है जैसा कहा गया, अब हम एप्लीकेशन की थोड़ा सा और डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें मैथमेटिक्स। हमारे पास बहुत खजाना है जो a+b होल स्क्वायर, अब ये a+b होल स्क्वायर जो टीचिंग टूल ये है a+b होल क्यूब। अब a+b होल क्यूब का मॉडल बनाइए कि a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर, तो a+b होल क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर क्या है? a क्यूब भी है, b क्यूब भी है, 3a स्क्वायर भी है, 3ab स्क्वायर भी है। और जब स्टोर वगैरह आप देखिए बहुत से जो बने हैं उसमें सब तक क्यूबार्ड है। ये आत्मनिर्भर भारत है। हर जगह मैथमेटिक्स का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और आप लोग जैसा कि रत्ना सागर ने कहा, 300, 400, 500 टीचर्स या फेसबुक में सब लोग अपने इस चीज को बदलिए, तो 5 साल के अंदर आप देखिएगा सारे नए तरह की कार ज्योमेट्री स्ट्रांग हो जाएगा, नए तरह के आपके मिसाइल, नए तरह एरोप्लेन हमारे यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लास्ट में एप्लीकेशन देखिए, ये कहीं हमको सुवेनियर था, ये देखिए गौतम बुद्धा है, तो गौतम बुद्धा की भी एक लाइन आप नोट कर लीजिए, वी आर शेप्ड बाय आवर थॉट्स, व्हाट वी थिंक वी बिकम। तो आज की वेबिनार के थ्रू जो रत्ना सागर इतना प्रयास करके कर रहे हैं, इनकी टीम कर रही है, आज से ही करिए, अपने बच्चों सारों को कहिए कि हमको आत्मनिर्भर के लिए मैथमेटिक्स को सबसे इजी बनाना है और उसके लिए हमको अपने विचार में बदलाव लाना होगा। और विचार इसीलिए गौतम बुद्धा ने भी कहा है, वी आर शेप्ड बाय आवर थॉट्स, व्हाट वी थिंक वी बिकम। और आज की तारीख से जो तमाम क्वेश्चन कैसे फोबिया रिमूव किया जाए, कैसे सर इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए, ये सब चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं कि हम 15 साल से पढ़ रहे हैं, मुझे सारी गणित आती है। मैं सारी डिग्री DSC भी सब कुछ करने के बाद मैं डेली स्टार्ट करता हूँ कि हमको कुछ नहीं आता, 0 से स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखिएगा कितने पॉपुलर टीचर हमारे मैथ लैब को देख कर NCERT न जाने कितने प्रेसिडेंट अवार्ड मिल चुका है। तो आप सारे टीचर्स को तमाम अवार्ड मिलेंगे जो TGT है, PGT में जाएंगे। अब ये भी सजेशन है, जब PGT में जाइए तो मैथमेटिक्स किट लेकर जाइए। कहीं जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सिलेक्शन कमेटी में PGT, TGT, प्रिंसिपल कोई किट लेकर नहीं आता है, हैंडमेड किट। तो मैं सारे आप मैक्सिमम MSc होंगे, सब किट लेकर जाइए बना कर अपने एरिया कि मेरी एक क्रिएटिविटी 9th क्लास में 10th में है, 11th को हम इस तरह पढ़ाएंगे, 11th को इस तरह से हमने पढ़ाया, प्रिंसिपल बनने के लिए इस तरह से करेंगे। तो आप देखिए कितना आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। तो आप यहाँ देखिए ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स यू आर, हम 9th 10th में भी यूज कर रहे हैं कि हमने कहा था a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर, a+b। अब इसको थोड़ा सर्किल छोड़ दीजिए, तो इंस्क्राइब सर्किल ऑलरेडी हमने बता दिया। और इन साइड देखिए ये आपका गौतम बुद्धा का इमेज। तो अगर a ये है, b है, a+b हो गया, और अगर ये a है, ये b है, तो a-b हो गया। तो ये पूरा अगर आप कैलकुलेट करिए, जो कुछ हम बोल रहे हैं अभी चौरसिया जी बोलेंगे, सब जाकर आप लोग शाम को बैठकर 1 घंटे में नोट बना लीजिए। अगर परफेक्ट टीचर बनना चाहते हैं, सब भूल जाता है, मेमोरी इतनी शार्प सबकी नहीं होती है, सब भूल जाता है। इसलिए आज ही जाकर आप 2 पेज का, 3 पेज का जितना भी है नोट बना लीजिए और देखिएगा नए अवतार में आप क्लास में जाएंगे जब खुलेगा। अभी ऑनलाइन तो परिवर्तन लाएंगे ही, लेकिन जब आप क्लास में जाएंगे, नए अवतार में जाएंगे। तो अब इस तरह से यहाँ a सेंटीमीटर बनाए भी तो a+b हो गया। अब ये a सेंटीमीटर है, ये b सेंटीमीटर है, तो AB एरिया, AB एरिया, AB एरिया, AB एरिया, तो ये 4AB है। ये a-b स्क्वायर है, तो पूरा ये फार्मूला क्या बन गया, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a-b स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। डेली लाइफ में देखिए एप्लीकेशन। अब देखिए बच्चे को अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है
और आत्मनिर्भर मतलब बच्चे को इस तरह से 100 जो है इस तरह से उसने पेंटिंग बना डाला, और हर पेंटिंग के 100 रुपए 200 रुपए जो हम लोग गिफ्ट दिया है तो होगा ही 200 रुपया। अब कितना पैसा उसको मुश्किल से 10 रुपए 20 रुपया 25 रुपया खर्च होगा और 200 रुपये का बेचेगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह से न जाने कितने वो डिजाइन, जब ज्योमेट्री उसकी स्ट्रांग हो जाएगी तो देखिएगा कितना आत्मनिर्भर की तरफ हम जितना भी है। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट आप सारे टीचर से है कि ज्योमेट्री, जिसको एनसीईआरटी ने अभी अचीवमेंट सर्वे में पाया है कि ज्योमेट्री कंसीडर मोस्ट डिफिकल्ट, और वो हमने फीडबैक हमने फेस टू फेस जब हम पीजीटी से टीजीटी डीपीएच चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे आर्मी, सब जगह वही फीडबैक मिला जो हमारे रिटर्न रिकॉर्ड से एनसीईआरटी में आया है। डाटा कलेक्ट हुआ है, वही फिजिकली वेरीफाई वही मिला है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ज्योमेट्री को स्ट्रांग बनाइए। आईएएस तक की ज्योमेट्री जितनी है वो प्लेन ज्योमेट्री है, वो एक्सियम्स पर बेस है। और जब 9th-10th में हम आ जाते हैं और इंसेक्ट चाहे सीलिंग पर है या इंसेक्ट आपका कहीं भी मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन हर जगह कैसे निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यूज होती है। हमारी लोकेशन आपको पता करना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसको यूज करके और उसको ज्योमेट्री को स्ट्रांग बनाने की, उसको रटवाइए नहीं कि फार्मूला के अंडर रूट x2 -x1 क्या मतलब है उसका, और अप्लाई करके आप करिए। और उसमें रत्ना सागर ने जो मटेरियल यूज किया वो तो यूज करेंगे ही आप। और एनसीईआरटी में जो हमने चौरसिया जी ने जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेबोरेटरी मैनुअल बनाया, किट बनाया है, उसको भी आप यूज करिए। तो आप देखिएगा बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आएगा। और आपने जो 12 बुलेट पॉइंट आपने दिया है वो ऑटोमेटिकली आपसे ही जवाब आ जाएगा। इस तरह तो जो सबसे इजी शब्द हमने कहा है, हमारे पास पूरे देश से फोन आया, सर जब से आपने एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग शुरू किया है 80% स्टूडेंट प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर रहा है, और 20% स्टूडेंट को हम ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ लगा देते हैं, और मेरा तो हल्का भाव कर दिया। कुछ ने कहा है कि डल, इस क्वेश्चनियर में आपके कुछ था बुलेट पॉइंट में, मंसल जी में रिवाइंड कराया था, सब देख लीजिएगा। उसमें डल स्टूडेंट को कैसे किया जाए। अरे डल को उसमें 80% जो कर लिए हैं, वो 20% जो डल है उसको उसके साथ लगा दीजिए। कोई जो वीक स्टूडेंट है वो अपने स्टूडेंट की भाषा ज्यादा समझता है, टीचर की भाषा कम समझता है। कि आप अपने यहाँ भी देख लीजिए, जनरेशन गैप के कारण, तो एक दूसरे से जो है उससे हेल्प मिल जाएगी। और ये तमाम फीडबैक मुझे मिला है कि सर हम यही करते हैं कि ग्रुप जो बनाते हैं उसमें एक वीक स्टूडेंट, ये नहीं कि वीक का एक जगह कर दिया और ब्राइट का एक जगह कर दिया, और उनको कह भी दीजिए कि नहीं आपको इसको सिखाना है। तो आप देखिएगा हमारा जो पर्पज है वो केवल 90% रिजल्ट लाने का, 95 नहीं 100% लाने का है। क्योंकि जो ब्राइट स्टूडेंट है वो तो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया चले जा रहे हैं, जो मीडियाकर और बिलो एवरेज है वही हमारे टीचर बनने जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो मोटिव है, हमारा जो विजन होना है वो 100% लाना है, और उसके लिए ये सारे टूल यूज करना है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। ऑनलाइन जब आप कुछ भी करिए विजुअलाइजेशन कराइए उससे, और नेक्स्ट टाइम जब उससे करिए तो कहिए कितने मॉडल आपने 1 डायमेंशनल के बनाए, कितने 2 डायमेंशनल का बनाए, कितने 3 डायमेंशनल, और कितना उसको अप्लाई करके देखा कि ये रेलवे स्टेशन पर है, ये एग्रीकल्चर में है, ये मकान में है, ये इंडस्ट्री में है, सारे हर जगह। इवन वेंटिलेटर आप देखिए, सारे वेंटिलेटर आप देखिए, सारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वहां पर है। बेड जितने हैं सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्योमेट्री हमारी सबसे वीक है, उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स उनको सारी तरह के तुरंत जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उनको तुरंत कहिए कि डेली लाइफ में इसको आप बनकर बनाइए, और प्रोटोटाइप उसको बनाकर भेजिए भी। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जहां जब भी आप मन की बात करते हैं तो कोई अच्छा चीज होता है, लेकिन अभी मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकली आप लोग करके कुछ नहीं भेज रहे हैं कि सर इस तरह से मॉडल बनाया है और मैथमेटिक्स इस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स बहुत ईजी फोबिया खत्म हो रहा है। तो पूरे देश को मैसेज जाता है, प्राइम मिनिस्टर के माउथ से कोई जाता है तो पूरे देश को मैसेज जाता है, और उससे फिर एक्साइटमेंट होता है सब। तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आने से ही फिर देश अपने आत्म बनेगा। तो आई थिंक टाइम पास हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। और आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो ऑलवेज वेलकम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for such a lovely and wonderful session on application-based and visualization-based approach towards maths. Most of our students are in recent times, most of them are missing these things. बहुत सारे बच्चों को इस तरह से, मैं अपने आप को अगर कंपेयर करूँ आज की डेट से, तो सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहूँगा, क्योंकि हमारे समय पे इस तरह के पैटर्न्स नहीं हुआ करते थे। खैर आज की डेट में आपने भी कहा कि बहुत सारे एज जनरेशन गैप भी आया है, जिसकी वजह से सिर्फ एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट बेस के साथ साथ पैंडेमिक में आईसीटी यानी कि
हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मोर टुवर्ड्स इंटरनेट की तरफ से पढ़ाई ज्यादा करवाई जा रही है. सो उसके ऊपर कई क्वेश्चंस आए थे, जिसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर पीके चौरसिया सर टू टेक ऑन द नेक्स्ट सेशन. डॉक्टर पीके चौरसिया सर, ओवर टू यू. Okay, thank you. In fact, I will thank to Ratna Sagar for giving me this opportunity to interact with so many people. In fact, I am just looking, there are 344 people are available on the Zoom and around 161 people are available on the, on the Facebook. So basically what I have planned for this small session, basically your requirement is how, if you are planning for online classroom teaching, how you can go about that. तो उसको ही मैंने अपने उसको ही मेन ऑब्जेक्टिव बना के मैंने कुछ रिसोर्सेज आपके सामने डिस्कस करने के लिए रखे हैं. और वो रिसोर्सेज अगर आप यूज करते हैं क्लासरूम में, तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स के तमाम चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे. मैथमेटिक्स की जो तमाम रिक्वायरमेंट है कि मैथमेटिक्स जब किया जाए तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आए, आपका बच्चा जो है रीजनिंग करने का स्किल उसके अंदर डेवलप हो, तो हम मैथमेटिक्स को ऑनलाइन मोड में किस तरह से हैंडल करें कि जो भी हमारी सेंस मेकिंग की बात है, रीजनिंग की बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, एक मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की बात है, वो किस तरह से हम कर पाए. तो हम देखेंगे हमारे पास इस समय बेसिकली अगर हम लास्ट 2 डिकेड्स की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट आई है. और उस एडवांसमेंट के साथ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो कंटेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, वो इन सब चीज़ों को काफ़ी कैटर कर रही है. तो मेरा ये सेशन आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव सेशन होगा कि हम किस तरह की चीज़ों को किस तरह की चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है और किस तरह से हम ऐसी चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं. तो मैं जस्ट शेयर करना चाहूँगा अपना एक पीपीटी आप लोगों के साथ, जिसमें मैं तमाम चीज़ें आपको बेसिकली डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा. वो हेलो. Yeah. So I hope you people are watching this PPT. Basically, I am talking about open educational resources here, and there are so many things available which are also paid version. But here I am talking about free and open educational resources which can be taken care by you people. So the first thing, what are the digital learning resources? If I'm talking about, basically digital learning resources, if I'm talking about the digital learning resources, even in NCERT has long been an advocate of this appropriate use of technology in the classroom. And in 2005, even in 2005, NCERT had published a focus paper. In that focus paper itself, the name of the focus paper was Teaching of Mathematics. They have talked about the importance of role of technology in the teaching and learning of mathematics. Even the other agency, the worldwide agency of that is the National Council of Teachers of Mathematics, NCTM, which is in USA, they are also talking about they are also given the statements that the regular access of technology that support and advance mathematics, the regular access of technology supports and advance the mathematics sense making, reasoning, and whatever the problem solving and communications. So they are also talking about the importance of information and communication technology, which we need to integrate in our classroom. So basically, since I am talking about the open educational resources, so I have a few things about to say the word open. We are talking about open access. The things should be available for without any cost. We are able to access it. Open access, open education, open content, open courseware, open source software, open educational resources. So this open means this should be available free of cost. This should be available for everybody. And I am talking about those resources here only. And if I am talking about this open thing, the other thing is what is the open in open content? What is the open in open content? So that is the first thing.
this is there is a 5R framework for it. Open in open content. If we are talking about open content, so open means we can reuse it. It is available for every time. We can reuse it. We can revise it. We are open to revise the content. We are open to remix our content. We are open to redistribute our content, and we are open to retain this content. So this is the meaning of open in open content, because that is the thing. If the content is there, we can reuse it, we can revise it, we can remix it, we can redistribute it, we can retain it. So these are the I mean, these are the these are the words which are used in I mean, these are the words which are used in open content. These are the sense of open in open content. And if I am talking about the e-contents, so these are the broad categories of e-content which are available in the on websites, also in the in e-content field, in the digital resources. Such type of things are available. That is, there are text materials are available, there are open images are available, audio materials are available, video materials are available, interactive materials are available, animations are available, simulations are available. So now I'll be showing you few examples here. Now I'm just showing you few examples. These are the few things I have noted down here. Like the resources you are talking about, this is the NCERT resource, that is the e-Pathshala. Maybe lots of people will be knowing about it. The other thing I'll be talking about National Repository of Open Educational Resources, NROER, and there is a Diksha platform of Ministry of Human Resource and Development. And there are few other things like SWAM platform is available. SWAM Prabha platform is also available. And the GeoGebra applets I will be talking about. The GeoGebra is especially for mathematics. So let me show you few examples first. Then I will be talking about more things. You can note down all these things, and later on, whenever you get the time, you can explore all these resources. So that you will be getting lots of other content materials by using these. Let me come to the. I'll be first showing you the trigonometry. So the first, how to reach it. I'm just taking few examples from the trigonometry itself. You can go to the website www.geogebra.org, and if you are exploring this website, you will get the apps also. You can get the apps also, and here it is written there, classroom resources. You can go to the classroom resources, and after going to the classroom resources, you can search your content here, whatever the things you are looking for. I am just looking for some trigonometry material, so I have got a useful resources here. I'm just exploring it for the sake of you people, so that you can also. I'll just take a couple of. These are the series of. There are 5 animations they have connected here. I'm just exploring a couple of them for you. And the first thing that is given here, that is the. I can show you on the big screen also. So this is the thing, and here you can do, you can change this angle theta. If this is the unit circle we have taken, so you can see the radius. आप देख सकते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 1 यूनिट की दी है, इसलिए हम इसे we say that this is nothing but unit circle. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा हम अगर हम थीटा को रोटेट करते हैं, तो हम अपने इस डायग्राम को इजीली एक डायनेमिक्स दे सकते हैं, और इसके थ्रू हम इसमें क्या हैपनिंग हो रहा है, क्या इसके साथ हो रहा है, उसको एक्सप्लोर करके हम मैथमेटिक्स की तमाम चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर ये एक यूनिट सर्कल है, तो डेफिनेटली अगर हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो हाइपोटेनस है, जो विकर्ण है, वो 1 है, और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये रेशियो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर हमारा 1 है, तो ये लेंथ जो है परपेंडिकुलर, ये लेंथ हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करने लगता है.
और इसी तरह बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 1 है तो ये लेंथ जो बेस है, बेस cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर हम थीटा को 0 एंगल देते हैं तो हमारा साइन थीटा जो परपेंडिकुलर का लेंथ था वो 0 हो गया है, और जो हमारा बेस का लेंथ है वो कम्प्लीटली 1 हो गया है, रेडियस के बराबर हो गया है। तो साइन थीटा इज साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1। यहाँ से हम इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। और जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। साइन थीटा की वैल्यू मतलब ये लेंथ जो है, इस ये परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये कहाँ तक बढ़ रहा है? जब तक हम 90 तक पहुंच रहे हैं। 90 तक हम पहुंच रहे हैं तो 90 पे साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जा रही है। 90 पे साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है और कॉस थीटा 0 हो जाता है। और जैसे हम 90 से आगे बढ़ते हैं साइन थीटा की वैल्यू अगेन पॉजिटिव ही है, क्योंकि वाई एक्सिस में साइन थीटा की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है लेकिन कम होती जा रही है। और लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव एक्स की तरफ चली गई है। कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव होके निगेटिव -1 की तरफ कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जस्ट इस बेसिक छोटे से के एनिमेशन के द्वारा हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसी भी तरह कोई भी एंगल है उसके तमाम, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसकी तमाम चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने में हम एक बेसिक एनिमेशन को लेके हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें एक मैं और आपको लूँगा, ये एक पाइथागोरस थ्योरम का बड़ा ही अच्छा प्रूफ इसमें दिया हुआ है। क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ, बट आप ये है कि जियोजेब्रा के वेबसाइट पे जाके आप जियोजेब्रा से तमाम रिसोर्सेज लेके आप उनको एक्सप्लोर करिए और अपने क्लासरूम में आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे बड़ा ही एक ईजी प्रूफ दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम का। कैसे दिया हुआ है? एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है जिसमें ए है, बी है और सी है, और इसका हाइपोटेनस सी है, इसका बेस ए है और इसका परपेंडिकुलर बी है। अब इसको जब हम रोटेट करते हैं, पहले हम क्या किए, हमने इसको रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया कि हमने इस ट्रायंगल की एक कॉपी ली और उसको साइड से बेस को परपेंडिकुलर से सटाता हुआ हमने लिटा दिया उसको। और फिर हम इस जो लेटा हुआ जो हमारा ट्रायंगल है उसको हमने ट्रांसलेट करके आगे बढ़ाया, और इस तरीके से हमने एक हाइपोटेनस, एक हमको इस तरह से ट्रेपेजियम मिल गया, जिसको हम ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। ट्रेपेजियम एक हमको मिल गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे इस बेसिक छोटे से कंस्ट्रक्शन से पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कितनी आसानी से आ जाता है। हम आसानी से देखते हैं कि अब इस ट्रेपेजियम की अगर हम एरिया की बात करें तो ट्रेपेजियम का एरिया हम जानते हैं कि सम ऑफ द ट्रेपेजियम में क्या एरिया होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द दिस ट्रेपेजॉइड बेस, और उसकी जो हाइट्स का सम होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ट्रेपेजियम की एरिया निकालते हैं। दैट इज, ये चीज भी a प्लस बी है और ये b है और ये है, तो हाफ a प्लस बी, हाफ a प्लस बी, और फिर ये a प्लस बी मतलब ट्रेपेजियम, सम ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो a प्लस बी ही है, तो ये हाफ a प्लस बी के बराबर है। और ये पूरा एरिया जो है वो 3 ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर है। एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये और तीसरा ट्राइंगल ये। तो हम देखते हैं कि ये हाफ ए बी है, ये भी हाफ ए बी है और ये हाफ सी स्क्वायर है। तो देखने का मतलब ये आंकड़ा और ये आंकड़ा दोनों यहाँ पे जो है ये दोनों बराबर हो जा रहा है। ये हाफ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस हाफ ए बी प्लस हाफ सी स्क्वायर। हमने इसको कैंसिल आउट किया, हाफ को, इसको सॉल्व किया, सिंपली हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर मिला। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हम बहुत ही इजीली जो है इस चीज को हम यहाँ पे कर पा रहे हैं और बड़ी आसानी से हम इस चीज को कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम डायनेमिक्स को, अगर हम एनिमेशंस को, हम अगर इस चीज़ों को प्रॉपर यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करना, मैथमेटिकल प्रूफ में डायनेमिक्स का बड़ा योगदान होता है। जैसे जैसे मैथमेटिक्स के उसमें डायनेमिक्स को हम देखते हैं, हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों को कर पाते हैं। तो ये चीज़ मैं बता रहा था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे दूसरे रिसोर्सेज पे बात करूँगा, क्योंकि ये जियोजेब्रा का जो रिसोर्स है
वो आप खुद भी एक्सप्लोर करिए। हमने एक जैसे एक और छोटा सा अगर आप कहिए तो हम पाई का डेरिवेशन किस तरह से हम करते हैं, मैं इसको भी आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकता हूँ। ये जैसे हमने एक सर्कल लिया, ये ग्रीन में एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो एफ जी है। इस सर्कल का रेडियस एफ जी है और इस सर्कल के एक अंदर ट्राइंगल हमने लिया हुआ है, और एक सर्कल को मतलब इसको टच करता हुआ दूसरा ट्राइंगल हमने इसको लिया हुआ है। दो ट्राइंगल हमने लिया है, एक जो इंटरनली इसको टच कर रहा है और एक दूसरा एक्सटर्नली टच कर रहा है। अब अगर हम कहें कि डायमीटर इसका 5.3 हमने यहाँ पे ले लिया है, और पहले हमने सर्कल मतलब जो ट्राइंगल लिया तीन आई मीन जिस भी ट्रेपेजियम जिस भी पॉलिनोमियल से हम इसको टच वो कर रहे हैं, पॉलीगॉन से हम इसको टच कर रहे हैं, पहले हमने 3 का लिया, फिर हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमने जब 3 का लिया है तो इनर अप्रोक्सीमेशन हमने कहा कि अगर हम सपोज करो इस एरिया इस सर्कल का पेरीमीटर हम ये लें कि ये इंटरनल जो लेंथ है इसको नाप लें, और इससे बेसिकली क्या होता है, पाई का मतलब होता है पेरीमीटर अपॉन रेडियस, तो पेरीमीटर अपॉन डायमीटर, तो पेरीमीटर अपॉन इसका डायमीटर 5.3 लिया है, और इसका जो हमने ये लिया है वो आई मीन वो पेरीमीटर ऑफ इनर, ये इनर का जो हमने 13.76 हमारा कैलकुलेशन से आ रहा है, और ये हमारा सॉफ्टवेयर आराम से खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। और आउटर अप्रोक्सीमेशन फॉर पाई जो है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर हमने लिया है वो 27.49 है, और यहाँ भी हमने 5.3 से डिवाइड किया, तो पहले जो अप्रोक्सीमेशन आ रहा है बाहर वाले से 5.19 आ रहा है और अंदर वाले से 2.6 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम साइड्स बढ़ाना शुरू किए, 3 की जगह 4 किया, हमारा 2.83 हो गया, नीचे 4 हो गया। अब ऐसे हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे ही हम एक लिमिटिंग केस में जाते हैं कि जो हमारा पॉलीगॉन्स है वो ऑलमोस्ट सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होता जाएगा, तो हम देख रहे हैं इनर भी 3.14 के बराबर होता जा रहा है और आउटर भी 3.15 के बराबर होता जा रहा है। इनफैक्ट एक ये लिमिटिंग, और आगे कैलकुलस में हम इसको बाकायदा हम इस प्रूफ को पढ़ते भी हैं कि लिमिटिंग केस में अगर हम पाई की वैल्यू या सर्कल का एरिया हम निकालते हैं तो इसी तरह से कुछ अप्रोक्सीमेशन करके निकालते हैं। तो इन चीज़ों को कहने का मतलब ये है कि अगर जियोजेब्रा जैसे ज्योमेट्री के सॉफ्टवेयर्स को हम यूज करते हैं तो हमको अपने कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना बड़ा ही आसान है, और बड़ी ही आसानी से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। और जब विजुअलाइजेशन प्रॉपर होता है गणित में विजुअलाइजेशन का एक अपना इंपॉर्टेंस है, और जैसे जैसे विजुअलाइजेशन हम इजीली कर सकते हैं, हम मैथमेटिक्स का कम्युनिकेशन, टीचिंग लर्निंग और मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो ये एक हमने आपको रिसोर्स जियोजेब्रा के बारे में बताया है। दूसरा रिसोर्स जो मैं आपके सामने कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो ई पाठशाला जो हमारे एनसीईआरटी का खुद का है, वो आपको जानना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जानते भी होंगे, मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना वाला हूँ। ई पाठशाला की वेबसाइट पे जाता हूँ, इसका ऐप भी है, इवन जियोजेब्रा का भी ऐप मिलेगा जो आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ की ई पाठशाला का भी ऐप मिलेगा जो आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं। मैं इसके वेबसाइट के वर्जन पे देख रहा हूँ अभी जैसे हम यहाँ पे गए, हम एज ए टीचर इसको एक्सेप्ट किए। यहाँ पे हम सारे ई टेक्स्ट बुक हमको मिल जाते हैं, एनसीईआरटी के सारी ई टेक्स्ट बुक मिल जाती है। कुछ टीचिंग इंस्ट्रक्शन मतलब टीचर मैनुअल भी हमारे अपलोड है, अभी बहुत से नहीं अपलोड है। लर्निंग आई मीन उसका एलिमेंट्री लेवल के लर्निंग आउटकम सारे अपलोडेड है यहाँ पे। अगर हम ई रिसोर्सेज की बात करें, ई रिसोर्सेज बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा था आपको, तो यहाँ पे हम ई रिसोर्सेज जो है ये जैसे वीडियो टाइप का हमने ले लिया, लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लिया हिंदी, और हमने लेवल ले लिया सेकेंडरी लेवल का वीडियो सेलेक्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी के ये अपने डेवलप किए हुए रिसोर्सेज हैं, और ये आप यहाँ पे अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें गणित की ये है, दो चरों के रैखिक समीकरण, ये दो चरों का जो रैखिक समीकरण होता है, इसका एक वीडियो आपको अवेलेबल है, और आप इसको बाकायदा यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा था, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारे NROER में भी हैं। NROER से ही वहाँ पे लिंकिंग की गई है, और NROER पे अगर आप जाएंगे तो NROER से मैं एक बार NROER जो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो एनसीईआरटी की अपनी रिपोजिटरी है, जो MHRD के अंतर्गत MHRD के अंडर में डेवलप की गई है, तो ये मैं इसकी रिपोजिटरी आपको दिखाना चाहता हूँ।
रिपोजिटरी पे गए, उसके बाद हम ई लाइब्रेरी पे गए। ई लाइब्रेरी में जाके हम यहाँ से वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी आसानी से हमने सोर्स लिया यहाँ से। सोर्स चाहे आप सारे ले लीजिए, आप टारगेट ग्रुप ले लीजिए। टारगेट ग्रुप एज ए टीचर हम यूज करना चाहते हैं, हमने इसको फिल्टर किया। उसके बाद हमने यहाँ से टारगेट ग्रुप का लैंग्वेज हमने लिया, हमें हिंदी का, हमें यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन चूंकि हम इस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका मोस्टली जो है हिंदी में ही उनको वो ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो हमने हिंदी लैंग्वेज लिया। उसके बाद हमने अपना लेवल लिया, लेवल हमारा सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल हमने लिया इस समय। और फिर जो है हमने लिया यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो है ये मैथमेटिक्स हमने फिल्टर किया यहाँ से। मैथमेटिक्स फिल्टर करने के बाद हमको ये तमाम मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में लेंगे तो इसमें कई गुना आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी में कुछ थोड़ी सी कम ही मटेरियल है, लेकिन फिर भी आप ये तमाम यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे ऑडियो प्रोग्राम 2 मिल जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट्स देखना चाहेंगे, वीडियो 5 मिला यहाँ पे। लेफ्ट में आप देखिए, यहाँ पे फिल्टर करने के बाद हमको 40 फाइलें मिली हैं, जिसमें 33 डॉक्यूमेंट की फाइल है। डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे आप तो ये बुक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, पुरानी बुक्स भी कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। और ऑडियोज़ की बात करेंगे तो 2 ऑडियो प्रोग्राम, ये रामानुजम के ऊपर 2 ऑडियो प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, यहाँ मिल जाएगा। और वीडियोज जो हमने अभी 5 वीडियोज देखे थे वो वीडियोज उपलब्ध। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये सारी वीडियोज आप यहाँ पे जो जैसे मैंने क्लिक किया, ये आप अगर ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड बटन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से इन रिसोर्सेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पेन ड्राइव में लेके अपने क्लासरूम में चाहिए तो अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। तो ये एक कपल ऑफ मैंने एनसीईआरटी की चीज़ें दिखाई हैं। और मैं एक वर्ड का आपको शेयर करना चाहूँगा, एक वर्ड का वर्ल्ड लेवल का एक बहुत ही अच्छा रिपोजिटरी है जिसको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। वो उस वेबसाइट का नाम कृपया आप नोट करिए अपनी कॉपी में, और वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। वो वेबसाइट है ck12.org। ck12.org पे मैं गया हूँ और ये टीचर्स के लिए ही बनी हुई है। इसमें आप जाके एक तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अपने गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ जाके आप ck12.org पे जाइए। यहाँ पे मैं गया और यहाँ से हमने सब्जेक्ट चूज किया। यहाँ ढेर सारे सब्जेक्ट के मटेरियल्स उपलब्ध हैं। यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स में गया, मैथमेटिक्स में तमाम ग्रेड्स के हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्री का ही मटेरियल लिया। अभी ट्रिग्नोमेट्री पे क्लिक किया हमने। इसमें क्या चीज़ है कि पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक मतलब थोड़े से अगर हायर क्लास के 11-12 के भी कॉन्सेप्ट यहाँ मिल जाएंगे आपको। हमने यहाँ इसको एक्सपेंड किया तो जैसे राइट ट्राइंगल्स के एंड पाइथागोरियन थ्योरम से रिलेटेड उसके सब टाइटल सारे यहाँ मिल जाएंगे। और ये अब इसके सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें एक ये देते हैं प्लिक्स। यहाँ पे ये लोग देते हैं प्लिक्स, प्ले लर्न इंटरेक्ट एंड एक्सप्लोर, एक कॉन्सेप्ट विथ प्लेक्स, एक कॉन्सेप्ट विथ प्ले, ये एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। हमने जब इसको क्लिक किया है प्ले लर्न इंटरेक्ट एंड एक्सप्लोर पे, तो हमको एक इंटरेक्टिव मटेरियल यहाँ मिलता है। और ये इंटरेक्टिव मटेरियल जैसे हमने लिया, कोई भी इंटरेक्टिव मटेरियल आप लेंगे तो जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये इंटरेक्टिव मटेरियल यहाँ के लिए मिला ये। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ये अच्छा इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसको पढ़ना है कि ड्रैग द रेड पॉइंट टू एडजेसेंट, ये रेड पॉइंट को आप इसको ड्रैग करके आप इसका लेंथ जो भी जैसे ये कह रहे हैं वैसे करिए। फिर इसके बाद इसको चैलेंज मी करते हैं। चैलेंज में क्वेश्चन देते हैं आपको, आप यहीं पे यहीं का यहीं हिंट भी देंगे, यहीं का यहीं सोल्यूशन भी देते हैं। तो ये एक अच्छा चीज है। ये आप यहाँ पे आप अपना क्लास भी असाइन करते हैं, कर सकते हैं। आप इसमें अपने बच्चों को चाहिए तो उनको, अगर वो बच्चे भी अगर मोबाइल से या इससे कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो उनको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और जो चीज़ आप चाहिए बच्चों को असाइन करने के लिए, जो चीज़ें, तो आप बच्चों को असाइन भी कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा। आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये तो प्लिक्स था। अब इसके अंदर अगर हम इसके किसी कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो प्लिक्स के अलावा वीडियो भी देते हैं ये। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ है कि इसमें हिंदी प्रोग्राम थोड़े कम है और इंग्लिश प्रोग्राम इसमें बेसिकली ज़्यादा इंग्लिश ही। जैसे ये मैंने लिया, ये टॉपिक लिया था पाइथागोरियन थ्योरम का, तो इसमें रीडिंग मटेरियल भी दिया हुआ है
रीडिंग मटेरियल के साथ साथ एक फ्लिक्स जो भी मैंने आपको बताया था, प्ले लर्न इंटरेक्ट एंड एक्सप्लोर करके ये जो देते हैं, इसके साथ इन्होंने एक वीडियो भी दिया हुआ है, साथ में एक वीडियो भी दिया हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ से पूरा उस कॉन्सेप्ट का पूरा प्रूविंग द पाइथागोरियन थ्योरम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक अच्छा सा वीडियो आपको मिलेगा जो पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता होगा। और लास्ट में यहाँ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी देते हैं, जिससे आप चाहें तो मतलब बच्चे को ये पूरा एक सेट असाइन करके आप बच्चे को पूरा एक बच्चा यहाँ से एक्सप्लोर भी कर सकता है और यहीं पे टेस्ट भी दे सकता है वो। तो ये आप ck12.org, इट्स अ वेरी गुड रिपोजिटरी फॉर यू पीपल, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो इसके बाद जो मतलब मैं एक लास्ट आपको, अभी मेरे पास वैसे लिस्ट तो बहुत है, 15-20 बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, लेकिन टाइम कांस्टेंट को देखते हुए मैं जो अगला आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है खान एकेडमी। खान एकेडमी बहुत ही पॉपुलर है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें उपलब्ध है। एज ए टीचर आप इसमें इनरोल्ड हो जाइए, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देना है। और इसमें क्या है, कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो बेसिकली ये मैथ्स के ही प्रोग्राम ज़्यादा करते हैं, मैथ्स के ही प्रोग्राम है इनके पास, मैथ्स साइंस और अभी इंजीनियरिंग वगैरह भी इन्होंने कर दिया है। पहले बेसिकली हमारा कंसर्न यहाँ मैथ्स से है। यहाँ कोर्सेज में जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में सपोज करिए मैं गया, क्लिक किया तो यहाँ भी इन लोगों ने पूरा एकदम यहाँ स्टार्ट जो कोर्स चैलेंज भी कह देते हैं कि आपको कितना आता है, आप उतना एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर आपको उस पॉइंट पे पहुंचा देते हैं। मैं भी इसको नो थैंक्स कहता हूं। आप इसमें पूरा जब आपने ट्रिग्नोमेट्री में गए तो यहाँ पे ये आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री विथ राइट एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री विथ जनरल ट्राइंगल्स, ये सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। जैसे मैंने लिया गेट स्टार्टेड पे गए हम, जो इनका पहला यूनिट है, तो बिल्कुल जैसे हमारा चैप्टर होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इस पे वीडियो लेसन आपको देंगे। ये वीडियो लेसन पे आपको सारी चीज़ें समझाते हैं ये, और इसको समझाने के बाद जो है आप जब इसके लेसन पेज पे जाएंगे या फिर यहाँ पे आप इसमें प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। और यहाँ भी आपको ये पॉसिबिलिटी देते हैं, जैसे मैं अपने अकाउंट में गया, अपने टीचर्स डेस्कबोर्ड में गया, तो इस तरह से मैं अपना क्लास ऐड कर सकता हूँ। क्लास ऐड करने के बाद जैसे मैंने यह क्लास एक ऐसे ही आप लोग के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया था मैंने, यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट्स करके मैं बच्चों को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो बच्चे यहाँ पे दे कैन बी एडेड हियर, दे कैन गेट लॉट्स ऑफ मेनी अदर थिंग्स। तो मैं बेसिकली आपको एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी का यूज करना ये नहीं है कि हम टीचर को रिप्लेस कर रहे हैं, ये कभी नहीं है कि टेक्नोलॉजी यूज करके हम टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं। दीज आर जस्ट एक सप्लीमेंट्री टूल्स हैं जो टीचर के साथ अगर रहें तो टीचर जो है इन चीज़ों को और इफेक्टिवली जो मैथमेटिक्स की बेसिक कंसर्न है कि अगर हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं तो सबसे बच्चे के अंदर एक सेंस मेकिंग डेवलप हो, बच्चे का रीजनिंग पावर डेवलप हो, बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो, बच्चे का मैथमेटिकल कम्युनिकेशन डेवलप हो। तो वो आईसीटी को अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर टीचर इंटीग्रेट करता है तो कहीं ना कहीं अगर वेल प्लानिंग करके इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करता है तो कहीं ना कहीं सारे गोल को हम अचीव कर सकते हैं। तो नाउ आई थिंक माय टाइम इज ओवर, सो थैंक्स अ लॉट। मैं अभी अपना ये स्क्रीन क्लोज करता हूँ। हाँ, आई थिंक स्क्रीन क्लोज हो गया है। Thank you, sir. Thank you very much. या Yes, sir. स्क्रीन तो मेरा क्लोज हो गया। जी सर, बिल्कुल क्लोज हो गई सर। Thank you very much. Thank you very much, sir, for such wonderful insights on application-based and ICT usage of the materials. बहुत सारे आपने नए टेक्निक्स बताए सर, बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत अच्छा लगा टीचर्स को जान के। और होपफुली अब हम एक थर्ड सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मिस्टर प्रकाश who will be telling about the books of Ratna Sagar. Prakash sir, over to you, so that the teachers Yeah, good can know evening. what are the changes according to the CBSE guidelines and everything, sir. Please. Yes. Do you need the PPT, sir? Yeah, I'm just opening it. I'm just sharing it. If you want, I can play it for you. Yeah, you can play it for me. Okay. Yeah. Yeah, good evening, everybody.
after the session by two eminent persons, and that also from NCERT, I think you have received more than the information. I will just briefly go through the changes in the syllabus. Basically, CBSE announced the syllabus in for academic year 2020-21. If you go through the syllabus, you won't find any changes in it. But there is a change in the question paper design. If you see the typology of questions, they have removed the question assigned to very short answer, and long answer type. They have also combined remembering and understanding in under one group, and the second group is now applying, and the third group is analyzing. And they have completely done away with this. Now coming to the book, basically, CBSE has introduced your standard and basic level examination for class 10. But the surprising thing is, they have introduced, but there is no change in syllabus, no change in internal assessment and periodic test paper. But at the end of this, there will be two exams. So how we have gone in revising our book? See, we are in constant touch with the NCERT people and the people at the helm of the affairs at the CBSE. So what we have done, we have designed the book according to their feedback and the feedback from the educationists and teachers all across India. So even in short example, what we have done, we have given for basic and standard level. See, for the standard level, the people also have to do the basic level. And then we have, Abid, next slide. Abid, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Which slide, sir? Please let me. Next slide. Even we in the exercises also we have given for basic and the standard level standard levels. Next slide. See, and for standard level, see, for a standard level, it is a standalone level, but they have to also do the basic thing. So for one heading is your basic and standard level, and other is for standard level. We have included latest CBSE sample paper, question paper, and board exam question up to 2019 have been included, because these basically give an idea of the type of questions that have been changed. If you see the pages, we have also marked the pages. It is for your reference also. Next slide, Abid. These are the pages we marked. And we have also included NCERT and NCERT exemplar problem. See, in NCERT, what you have limited number of your questions, but it covers all type of questions. So we have also included NCERT as well as NCERT exemplar questions also in our textbook. Next slide, Avi. In class 9, since there is no board examinations, what we have done, we have included NCERT questions are also included. So no need of going for the NCERT books. Next slide, Amit. Amit, next slide. Yeah, these are all marking. Now, the important thing is the word problem. Comprehension of word problem has been made easy. Please, comprehension of word problem has been made easier by forming equation in words and then translating them into mathematical code. See, a student of mathematics is not very good in English. So what we had done, to simplify this process, what we have done, that will be explained by seeing the next slide. Next slide, Abid. See, we have formed the equation in words. Equation in words, and from that we have formed the mathematical equation. See, by reading the question, a student can translate it into mathematical equation in words, and then form the mathematical. And secondly, for if there are two variables. Next slide, David. The word problems involving two variables are given in tabular form so that the student can form equation easily and quickly. See, basically, these are to simplify mathematics and to remove fear from the student's mind, basically. So how they will able to do the word problem. See, if you see the tabular problem, it measures a train, bus, distance, speed, and time. Word problems part into variables, we have formed the tabular form. In tabular form, we have formed the equation, and from that the equation. Basically, this all simplifies mathematics, basically.
And interest of the student has been maintained by citing examples from day-to-day life. Basically, how why maths is important and how it is related to their day-to-day life. So we have given examples from day-to-day life, which relates their conceptual learning to their day-to-day life thing and all. Next slide, Avi. At the end of each chapter, please remember, at the end of each chapter, there is an exhaustive collection of well-graded MCQs, fill in the blank and true and false. Short answer questions and long answer question and value question. If you ask me why exhaustive collection of MCQ, if you see the sample paper which were released by last year, 20 marks questions out of 80 are being MCQs, are even MCQs. That means 25% of the questions are your MCQs. Next slide. So we have true or false, multiple choice questions. And this is in each chapter. For basic and standard levels, we have also labeled them. And please remember, CPSC has not this categorized. They have simply said your objective type questions. Objective type questions may come up for any type. Because these days, things are changing very fast. So short answer questions we have for basic and standard level, for standard level. And at the end of every unit, we have a 2 unit test. Unit test 1 is for basic and unit test 2 is for the standard levels. This is the unit test 1. This is a unit test 1 and this is a unit test 2. This all, and we have also given math lab activity. See, for your internal assessment, 5 marks are being allotted for math practical. So to take care of this, we have also given math lab activities have been included, which also helps in conceptual learning also. You can see the pages. Abid, next slide. These are the pages given at the end of the book. Abid, next slide. See, resources for teacher, basically. All the questions given in our textbook have been thoroughly thought. Each and every step is given. Even for MCQs, we have not written the direct answer. We have give the complete solution, step by solution. So because the marks are deducted at each step for different levels also, on different steps and all. So a student need to follow the different steps also. And for each chapter, we have also given worksheets, ready-made worksheets, that is in the printable form. And these all are given in soft copy, basically. Next slide, Avi. Now, we are given free posters. Free posters contain important formulas in the book. No need of preparing a separate note for these formulas and all. These are all given in the book itself. And test papers are given to practice for periodic tests, for enrichment activities, and annual paper. See, these are also given in your free, in the free form and all. This can be pulled out from the book. Why we have given in a pull out form? The reason being, in September and October, CBSE comes out with your new sample paper design. If there is any change, then what we do, we provide free test papers to each and every user of our book. Yeah, next slide, Avi. These are the periodic test paper 1. This is the enrichment activity for internal assessment. Next slide, Avi. This is for another one. Annual test paper have been updated according to the new pattern of board examination. What I said, now 20 MCQs has been added, 20 MCQs. And this also we have given a separate test paper for basic and separate test paper for your standard thing. And one thing I assure you, if any change is being brought out by CBSE, I assure you on behalf of Ratnasagar, we will provide supplements free of cost to each and every student. And any help you require, please feel free to contact us. We are available 24/7. Thanks. Thanks, Abhi. Thank you, Prakash sir. Thank you very much for the wonderful insights on the books
what we are having and what we are giving for free of cost to all the teachers. Now I request each and every teacher to just be patient for 1 or 2 more minutes, because we are going to share the QR code for your feedbacks. On the screen you can see the QR code. आप लोग ये QR कोड अपने किसी भी मोबाइल से या किसी भी गैजेट से स्कैन कर सकते हैं, और एक फीडबैक फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट किया जा रहा है. साहिल, इफ यू कैन प्लीज डू द फेवर. सो वहां से भी आप क्लिक करके, चैट बॉक्स से भी लिंक क्लिक करके आप फीडबैक फॉर्म अपना भर सकते हैं. मैं इसे और 30 से 35 सेकंड होल्ड करूंगा. प्लीज इसको स्कैन करके और अपने फीडबैक फॉर्म्स भरिए. साथ ही साथ मैं पेस्ट करता हूं आपके लिए फीडबैक फॉर्म्स के लिंक्स पे चैट बॉक्स पर. वेट फॉर दैट टू. And I request Narayan Bansal sir to please come on the screen and share your inputs. Narayan Bansal sir is the national head for sales pan India, so he will be addressing you people for some more inputs. Narayan sir. Yeah, thank you very much, Abid. Thank you very much, Professor Dr. Hukum Singh, Professor Dr. Chaurasia, and all the eminent teachers of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and some other states. Sir, in this tough time of Corona of almost last 3 months, I personally never felt कि इस इतने टफ टाइम में एक शाम इतनी इंफॉर्मेटिव हो सकती है. Really, this was a lovely evening. The type of inputs, the type of knowledge, information, both of you eminent personalities shared with us, with the teachers of mathematics. Awesome. I am sure that such learning will be with us forever. Approx 2 years back, when I met Dr. Hukum Singh, I'm just sharing this story to all the teachers of mathematics. So I asked Dr. Hukum Singh, sir, math में ऐसा क्या है, मैथ टीचर्स से आपका इतना लगाव क्यों है, क्या वजह है? तो डॉक्टर हुकुम सिंह बोलते हैं कि मैथ का जो टीचर है वो कभी झूठ नहीं बोलता. मैथमेटिक्स टीचर्स नेवर टेल लाइज. मैंने कहा वो कैसे सर? बोले वो कुछ भी बोलो, सारा इक्वेशन बना के आखिरी में हेंस प्रूफ्ड जरूर करते हैं, इट इज सिद्धम, और हर बात इनकी फॉर्मूले से ही शुरू होती है. मैंने कहा अगर उनको कभी झूठ भी बोलना पड़े तो कहते हैं, फिर उसमें लिखते हैं वो आगे कि सपोज दैट 2 + 2 = 5, और बहुत सारी इक्वेशन करके फिर आखिरी में हेंस प्रूव कर देते हैं. So basically you are not the mathematicians. I'll say that teacher of mathematics are math magicians. Thank you very much once again on behalf of Ratnasagar for being the part of this webinar. And I promise you all, as far as the textbook or the material of Ratnasagar book is concerned, our textbook is authored by Mrs. Monica Kapoor, having a 30 years of experience of teaching in a very eminent school of Delhi. I promise that our books will be all-time most updated and error-free book. I'm repeating this statement that Ratnasagar math textbook will be most time updated and no error book, no conceptual error, no printing error. That promise I can make you. And if there would be any change, any updates by the CBSE, NCERT, as Prakash ji told you, we will provide you the free of cost supplement copies to each and every student. Ratnasagar is committed and promise you all time best support as a publisher. Whatever we can do for the development, for the easy teaching of mathematics in your classroom, we are always with you. Time thoda tough hai. I request of all, please अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सब सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, और जल्दी ऑनलाइन क्लासेस खत्म होने के बाद रेगुलर रूटीन पे आइए. Thank you very much once again. Thank you, Bansal sir. Thank you for your wonderful inputs on all the books and everything. Now I request Rajiv Sharma sir, who is the National Marketing Manager, to come on the screen and like Bansal sir, please thanks each and every one, all the attendees and all the panelists. Please, sir, Rajiv sir, over to you. Thank you, Abhi. Thank you. It was really nice. And as a marketing head of Ratnasagar, I can say thank you to Dr. Hukum Singh ji and Dr. Chaurasia ji to actually take out time to do this webinar for us. And we all know that
from day one that Dr. Home Singh is really liked by math teachers all across this country, and the name itself is more than enough to actually ask them to be a part of this webinar. I would also like to say thank you to the entire MP Chhattisgarh team, without whose support this thing would not have been possible. And apart from that, all the teachers who have actually joined us on Facebook from any part of this country, and maybe for that matter world also, because we are actually getting some people watching us from different countries too. I may not be that much in number, but definitely yes, there are, wherever there are CBSE schools, they are with us. Thank you, Mr. Sahil. Actually, the man behind the shows, actually he worked from behind the curtains and actually tried to make all the webinars as successful as possible. Thank you, Arvind, actually, again, and thank you, Narayan, also as a head of this division to help us organize this webinar. Thank you all, thank you, and I can assure you as a marketing head of this company that these kind of seminars will definitely be, we will be doing much more in future to help the teaching learning community that we have across India. Thank you all. Thank you, Rajiv sir. Once again, thanks for your wonderful commitments towards the teaching fraternity, that we will be doing these kind of webinars for each and every one, and respectively with for every different subject altogether, whatever we publish. Hopefully, we will try our level best to do that in future, in coming sessions. Thank you all wonderful teachers for joining us, not only from Zoom, but also via Facebook. Facebook live sessions, and thanks to all the sales people from Madhya Pradesh and Chhattisgarh, all the teams, Mr. Zishan, Girish sir, Shrikant ji, Shalin Prashar, Uma ji, Mahesh ji, who have worked so hard to flow the information to all the attendees. Abid, you can also say thanks to Mr. Prakash, actually. Yes, sir. Prakash sir, who had given such... We always make error-free books, and he's the man behind those books. Yeah. Yes, sir. Prakash sir is the man behind the error-free books. Sir. Thank you for giving the insights, sir. Thank you very much. So thanks to Prakash sir at the end, and both the panelists wonderfully. We have compiled the session on time. Thank you for the panelists again. So here I say that we are coming to an end of the day. We call it a day, and we are ending this webinar. Thank you for being here. Thanks for participating. Take care of yourself. Stay home, stay happy. Sahil, I am ending the webinar from here. You can end it from Facebook too. Sahil, if you can hear me. Sahil, you there? Rajiv sir, with your permission. You're on mute, sir. Okay. So you are on mute. I cannot hear you. Oh, sorry. I think we have given this link of the feedback. Yeah, forms. absolutely. We have already given most of the teachers, maximum of the teachers have done already. I'm pasting it again for the final time. Okay. So that you can do it from there. The people who have not yet filled, they can fill up. Thank you very much. So I'm ending this. Thank you very much. Thank you. Take care, sir. Bye.